Hello everyone. Good afternoon. My name is Anvesha Gupta and I am a chartered accountant. I welcome all of you to this virtual meeting on a very interesting topic, that is acquaintance with direct taxation issues under digital economy. Thank you Jaipur branch for giving me this opportunity to be a part of this knowledgeable session. So as we all know, everything has its pros and cons. And with digital economy these days, the digital economy has been expanding tremendously. But with that, issues with direct taxation can also be seen. As spread of digital economy has given us many benefits like growth, employment, and many others. But at the same time, new challenges can also be seen. So moving forward, I would like to introduce our speaker today, who is going to explain this topic in detail. He is currently practicing in Jaipur in direct litigation for about more than 7 years. He has appeared before tribunal authorities several times, and he was also earlier associated with KPMG. He is a very talented and ambitious person. He is none other than CA Akshay Shah, sir. Sir, I please welcome you. Thank you so much, Anvesha, for such a kind words. A very good afternoon to all of you. Namaste. Hope everyone has joined as of now. Yes, we can start the session now. Yes, Anvesha. Yes, please, sir. So, how much members have joined till now? There are around 38, 37, Okay. excluding. Okay. So, first of all, I would like to thanks ICI Jaipur branch for providing me this platform to speak before such esteemed members. Secondly, I would like to thanks our chairman, vice chairman, specifically Kuldeep ji, for entrusting me, for providing me this opportunity for to speak before you as an eligible speaker. So now let me give a brief introduction about myself. My name is Akshay Shah. I qualified in 2014 and thereafter I started my professional journey with one of the big four. As soon as I joined the organization, लोग छोड़ने लग गए मेरी टीम में से. ऐसा नहीं था कि मैं उन्हें डराने लग गया था, but they have some different agenda. So I decided that I should remain with the team itself, and that benefited me a lot because I started doing those advisories. I started working with those people जो शायद तक एक अपॉर्चुनिटी वहाँ के मैनेजर्स हो गए या डायरेक्टर हो गए उनको मिलती थी. So within a short span of 3 years, I learned a lot over there, and then I started practice over here in Jaipur as a partner with Jensha and Company, focusing towards direct taxation and litigation. Friends, what I have seen in this very short span of my professional journey is that कुछ चीजें ऐसी होती थी पहले जो एक बार या दो बार या तीन बार अमेंडमेंट्स, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स अपने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में आया करते थे, which you will all agree. And because at that point of time इतना कम amendments आते थे, all professionals were aware about it, that whatever the changes that are coming over there. But nowadays अगर हम देखें जो डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, जो चेंजेस आ रहे हैं, जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, जो अमेंडमेंट आ रहे हैं, दे आर गेटिंग इशूड एज इफ इट इज अ डेली न्यूज़पेपर. मतलब यू बिफोर स्लीपिंग थिंग्स आर डिफरेंट, जब उठते हो तो कुछ और होता है. एंड एज ए ह्यूमन बीइंग, इट्स आवर टेंडेंसी दैट व्हेन वी गेट मोर ऑफ समथिंग we start ignoring those things, and as a professional the same thing started happening with us also. मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि हमें एक्सपर्टाइज करना चाहिए कुछ चीजों में, स्पेसिफिकली फोकस करो कुछ चीजों में, लेकिन एक अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है. एज ए प्रोफेशनल वी शुड बी अवेयर कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या नया डेवलपमेंट हो रहा है, क्या नई चीजें आ रही हैं, जिससे हम एक प्रॉपर्ली एडवाइस दे सके अपने क्लाइंट्स को. एंड इन दिस डिजिटल इकोनॉमी वेयर changes are happening so fast, we need to keep pace with it. Specifically जब से कोविड आया, it has given that jump, that push to this digital economy, that now it has penetrated in each of us. आज हम देखें तो एक कोई दादाजी भी, लेट्स अज्यूम 90 इयर्स एज के दादाजी जो एक कोने में अपनी चेयर पे बैठे हैं, उनको भी पता है कि आज स्विगी क्या है, जोमेटो क्या है, फार्मेसी क्या है,
and he is not at all required to rely upon any member of his family कि वो चीज ऑर्डर करे, वो सेल्फ सफिशिएंट है ऑर्डर करने के लिए सारी चीजें. With this background, let me first share my screen. Anvesha, it is visible? Yes, it is. Okay, perfect. So, so now this we will move towards our topic for today, which is acquaintance with direct taxation issues under the digital economy. Before moving forward, a small tip for the attendees. We will keep the session interactive after completion of each topic. But during the session, your mic will be on mute. For questions, you can post it in the chat box. All relevant questions will be answered either after completion of one topic or after the session, or in case of time constraint, it will be answered to you via the mail. So now, let's have a look what is there in our today's agenda. So in today's we will be covering about जो भी नए under the direct taxation laws जो भी digital economy के through changes आए हैं, like equalization levy आया है, TDS on e-commerce आया है, significant economic presence है, OECD global tax deal जो currently run कर रहा है, ये सारे changes आ तो गए हैं, but what is important is to understand the why. ये आए क्यों, क्या जरूरत पड़ गई थी कि इन चेंजेस को लाना पड़े, क्या नेसेसिटी थी कि लॉस के अंदर इन सबको अपन को कॉर्पोरेट करना पड़े. सो वी विल फर्स्ट गो टुवर्ड्स ओवरव्यू ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स दीस टॉपिक्स. सो डिजिटल इकोनॉमी है क्या? सो फ्रेंड्स, डिजिटल इकोनॉमी एक अब इकोनॉमी ही बन चुकी है which totally rely upon the digital technologies. It is also known as internet economy and also known as the new economy in today's world. Under the digital economy, now it has changed totally our mindset towards each and everything, this economy. Our mannerism of working, our thought process toward the work has been changed by this digital economy. कैसे चेंज हुआ? लेट्स टेक एन एग्जांपल कि पहले कभी एक कोई यूएसए की कंपनी हुई जिसको इंडिया में कुछ स्टैब्लिश करना है. अब इंडिया में स्टैब्लिश करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? दैट यूएसए कंपनी फर्स्ट नीड टू स्टेप ऑन टू द सॉइल ऑफ इंडिया. वहां पे वो कोई स्टैब्लिशमेंट फॉर्म करेगी, ठीक है भाई, स्टैब्लिशमेंट भी फॉर्म कर ली, वहां के लोकल लॉज जानेगी कि लोकल लॉज है क्या, लोकल लॉज जानने के बाद वहां का मार्केट एनालाइज करेगी, फाइलिंग करेगी एंड देन इट विल स्टार्ट डूइंग द वर्क. ठीक है भाई, वर्क भी स्टार्ट हो गया. ये तो हुआ एक एग्जांपल. सेकेंडली, अब समझो किसी को ऑफिस जाना है. अब ऑफिस जाना है तो कैसे जाना होगा? ही नीड टू टेक हिज कार एंड गो टुवर्ड्स द ऑफिस बिफोर डूइंग द वर्क. ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि 2-2 घंटे ट्रैफिक में लग जाते हैं. काम स्टार्ट होने से पहले ये जो वेस्टफुल चीजें थी, व्हाट डिजिटल इकोनॉमी हैज डन, digital economy has drastically reduced all these waste time and it has given us an option. क्या ऑप्शन दिया? डिजिटल इकोनॉमी ने बोला कि आपको काम करना है, you do your work, you just sit at your home, each and everything will be provided you online. आपको डेटा चाहिए, आपको डेटा ऑनलाइन मिलेगा. आपको कोई XYZ कंट्री में काम करना है, you are not required to go over there. You just सारा जो डेटा है आपको जस्ट अवेलेबल होगा ऑनलाइन पे, इंफॉर्मेशन जो है ऑनलाइन अवेलेबल होगी एंड यू जस्ट डू योर वर्क. सो इट प्रोवाइडेड अस विच दैट एक्स्ट्रा टाइम दैट वर गेटिंग वेस्टेड इन सम अदर. ओके, सो जो ये वेस्टफुल टाइम हो रहा है और जो ये सारी चीज डिजिटल इकोनॉमी में हो रही है, जो डिजिटल इकोनॉमी है, इट रिलाई heavily upon the intangibles for doing this. जैसे अगर डिजिटल इकोनॉमी को सॉफ्टवेयर चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए ऑफ दो सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर कैसे रन कर रहे हैं तो उसका पूरा प्रोसेस चाहिए, सारी की सारी चीजें. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो फीचर्स अगर अपन डिजिटल इकोनॉमी के देखें तो डिजिटल इकोनॉमी में अब जो यूजर्स हैं दे आर एबल टू कैरी द कमर्शियल एक्टिविटीज रिमोटली. जैसे आज आप वर्क फ्रॉम होम, अगर अपन कोविड एनवायरनमेंट का एग्जांपल देखें, सब जने वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. Even people are working from their dream destination also. That is the features of the digital economy. And remotely when you are sitting over there, आप
एक कंट्री में बैठे आप परचेज कर सकते हैं कोई एप्लीकेशन कहीं और से, एंड दीज आर द डिफरेंट फीचर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बिजनेसेस है, so it has reduced the cost of these business environment drastically जो ग्लोबली ऑपरेट हो रहे थे, क्योंकि उनको एक सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करी गई कि आप सेंट्रल लोकेशन से ऑपरेट कर सकते हैं, चाहे आपका कस्टमर कहीं और लोकेटेड है, चाहे आपका प्रोडक्ट कहीं और बन रहा है। So these were some of the features of digital economy. Okay, we have understood the features of digital economy. So let's see इस digital economy के अंदर different business models क्या क्या आ गए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है? दैट इज जो भी हम ऑनलाइन परचेज ऑफ गुड्स कर रहे हैं, ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं, ये जो सारी चीजें हो गई, दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। एग्जांपल अपने फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया। सेकंड, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। नाउ दिस मॉडल, हमें ये समझना चाहिए ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग है क्या, एंड आई बिलीव दैट हम सबने इस चीज को एक्सपीरियंस करा होगा। लेट्स अज्यूम अ सिचुएशन दैट you are planning a wedding in Goa. We type on our search engine wedding destination in Goa. As soon as we type wedding destination in Goa, हमें एकदम से लगता है खूब सारे एडवर्टाइजमेंट आने लग जाते हैं कि बेस्ट फोटोग्राफर गोवा का ये है, बेस्ट रिजॉर्ट गोवा का ये है, बेस्ट XYZ कोई भी चीज which is related to the wedding destination, you start getting that flight tickets to Goa, ये सारी चीजें। अब ये आ क्यों रही है, ये एडवर्टाइजमेंट आने क्यों लग गए? इसके पीछे अगर सिंपल लॉजिक देखा जाए तो ये है, आजकल हम जो ऑनलाइन सर्फिंग करते हैं, हम जो ऑनलाइन चीजें देखते हैं, जो भी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस मिल रही है, ऑल दीज थिंग्स दे कलेक्ट द डेटा। पर्सनल डेटा भी कलेक्ट करते हैं ये लोग, आपका आपका बिहेवियरल डेटा कलेक्ट करते हैं, आपका लोकेशन डेटा कलेक्ट करते हैं। And trust me, then when they collect those data, they analyze those particular data, and then as per the customer उसको target advertisements मिलते जाते हैं कि these are your choice or preferences, और उसको वो advertisement मिलते जाते हैं, and definitely you will click on those advertisement, and as soon as you will click on those advertisement, यही इनकी revenue होती है, यही इन मॉडल्स का रेवेन्यू जनरेशन होता है कि नंबर ऑफ यूजर्स क्लिक के बेसिस पे इनको वो रेवेन्यू जनरेट होती है। नेक्स्ट डिफरेंट बिजनेस मॉडल क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग। ये तो हमने कोविड में, मेरे हिसाब से जो सारी प्रैक्टिसिंग फर्म्स हो गए, सारे कॉर्पोरेट्स हो गए, ये सब के सब अब ऑनलाइन मूव कर चुके हैं। ये सारे के सारे सो अपना जो सर्वर है अब ना वो ऑनलाइन हो चुका है, सारा डेटा जो है वो ऑनलाइन स्टोर हो चुका है। बिकॉज अब डेटा ऑनलाइन स्टोर हो चुका है, इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, एंड दिस वी हैव सीन इन, yes, okay, and yes, this we have seen in this COVID environment that कहीं से भी हम बैठे हुए कोई भी काम हम आसानी से कर सकते हैं। So that was the benefit of the cloud computing. Blockchain, this is a very beautiful technology. ये वो टेक्नोलॉजी है जो कहा जाता है एक पैराडाइम शिफ्ट लाएगी अंदर टेक्नोलॉजीज। जैसे जो इंटरनेट कभी 40 साल पहले हुआ करता था, आज बोला जाता है वो ही ये चीज ब्लॉकचेन है आज के जमाने में। ब्लॉकचेन के बारे में बोला जाता है जैसे हर एक टेक्नोलॉजी जो आती है वो आपका कोई ना कोई गैप फिल करती है। एग्जांपल जो इंटरनेट था उसने आपका डिस्टेंस गैप फिल करा। ब्लॉकचेन इज सेट टू फिल द ट्रस्ट गैप। इन टुडेज एनवायरनमेंट हमें नहीं ट्रस्ट बैंक्स पे, बैंक को हम पे ट्रस्ट नहीं। हमें नहीं पता हम किससे अपना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो कहाँ बैठा है। यहाँ बैठे बैठे मैं यूएसए वाले से ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, लेकिन आई डोंट नो दैट पर्सन। मुझे पता है सामने रामलाल बैठा है, रामलाल बैठा है तो भाई मुझे पता है अगर ये मुझे पैसा नहीं देगा तो मैं इसके पास जा सकता हूँ। लेकिन जब मैं यूएसए यूके में घर में बैठे हुए ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये जगह कौन है। तो ये जो ट्रस्ट है जो हट रहा है, इस ट्रस्ट गैप को मीट आउट करने के लिए ये टेक्नोलॉजी आई है। ये टेक्नोलॉजी, इफ यू हैव एनी, कभी भी टाइम मिले जस्ट रीड दिस टेक्नोलॉजी। अभी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इसके इतने नहीं हुए, बट सम एग्जांपल आर द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। क्रिप्टो करेंसीज का एग्जांपल है जो हम सबको पता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट व्हिच इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। व्हाट इज IoT? So this technology is changing the way we think, it is changing the way we behave and we react. IoT क्या है? Internet of Things, it is a giant network with connection to different devices. अब
डिफरेंट डिवाइसेस कौन कौन से हो गए, डिफरेंट डिवाइसेस हो गए जैसे अपना कंप्यूटर के अलावा अपना लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, या फिर कोई भी डिजिटल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस जो भी हो गए, ये जो सारे हैं दे आर कनेक्टेड विद IoT। और ये जो डिवाइसेस है इनके अंदर एक सेंसर एम्बेडेड कर रखा है जो डेटा एमिट करता है। कौन सा डेटा एमिट करता है? जो भी इन डिवाइसेस को यूज कर रहा है उनका जो डेटा होता है वो एमिट होता है, और IoT प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है उन सारे डेटा को डंप करने के लिए। जैसे ही वो डेटा डंप होता है वो एनालाइज होता है, and further a valuable information is created by the IoT and it is provided to each and every person who is using those devices. For example, अभी जो अपने AC आ रहे हैं, तो AC के अंदर there is a particular embedded sensor जो ये बताता है कि अगर AC तेज हीटिंग करने लग जाए तो suddenly those information is sent to the customer support team and they are aware कि भाई इसको रिपेयर की जरूरत है। You are not required to tell them कि रिपेयर की जरूरत है या नहीं है, they will only contact you कि भाई ये टाइम आ गया है, अब रिपेयर की नीड है, हम आ जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दूसरी तरीके से बोला जाए तो ये robot है, it is a human robot. This is a machine which is incorporated with the intelligence of the human being, and it is supposed to do those tasks that we do. These are the machines जो complex algorithms और mathematical functions के basis पे काम करती है, and apart from that इन technologies को इतना improvise करा जा रहा है that they are giving that capability to adopt to different things, to respond to the new environment and to provide different solution. Example के तौर पे जो self driving cars जैसे Tesla आ गई है, apart from that digital assistant tool Alexa हो गए, so and last is the 3D printing. So these are the different business models जो कि इस digital economy में develop हुए। Now let's see how these business model जो भी थे ये सारे के सारे, इनका effect under the different sectors क्या रहा। First, let's talk about the retail. जो retail sector था, I'm not getting that option of pen. Okay, so अन्वेषा, Yes. ये इसमें PPT में इशू आ रहा है बीच में। एक सेकंड। So this is because ये सारे एक बार बंद करके रिस्टार्ट, मतलब PPT बंद करके शेयरिंग करके वापस शेयर करूं क्या? शेयरिंग स्टॉप करके हाँ दोबारा शेयर कर दीजिए। एक सेकंड। Meanwhile, I would like to request everyone that in case of any query, you can just raise your hand. There's an option of raising your hand, and then we can answer your queries number wise. Okay, yes, now it is coming. Okay. Yes, so मैं ये कह रहा था ये जो different business models हैं, इनका अब effect क्या रहा under the different sector? Let's see. Retail industry जो थी, so जो retail industry थी वो सारे के सारे online आ गए। Online जैसे अपना ग्रोफर्स हो गया, बिग बास्केट हो गया, they have started selling the goods online. Online sale तो करने लग गए। Apart from that, जो इनको data मिल रहा था, they analyzed those data and they started providing you customized products and customized discount also. In the financial services में क्या हुआ? So now each and every payment you are making is online. जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी रेवेन्यू आ रही है, mostly it has become online, digitalized, सब चीज ऑनलाइन आ चुका है। एंड बिकॉज ये ऑनलाइन आ चुका है और ये डेटा बैंक्स और इंटरमीडियरीज इनके पास है, दे नो कि आपका मंथली एक्सपेंडिचर क्या है, दे नो कि आपकी मंथली सेविंग्स क्या है, एंड देन दे प्रोवाइड योर पर्सनलाइज्ड स्पेंडिंग एनालिसिस and also different investment options as per the savings that you have. Under the transport and logistics, this digital economy has helped a lot. How? Now because of the GPS devices and other technology, you can track कि आपका logistic कहाँ पर है, आपका vehicle कहाँ पर है, आपका cargo कहाँ पर है, and it provides an accurate information to the customer that is just in time. Education and healthcare sector. This we have seen कि ये COVID के अंदर how digital economy has helped us in this particular sector. Because of lockdown जो एक साल तक रहे, and
जो अपने होम टाउन पे बच्चे आ गए, जो यूनिवर्सिटीज में थे, जो कुछ पढ़ रहे थे, इट wasn't लाइक दैट कि लॉकडाउन की वजह से भी उनकी पढ़ाइयाँ रुकी। बिकॉज ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, जो ऑनलाइन कोर्सेज सेमिनार है, दे वर एबल टू कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन, दे वर एबल टू गिव देयर एग्जाम्स। लेट्स अज्यूम अगर ये 5 साल पहले भी हुआ करता तो सिचुएशन वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट, बट टुडे थैंक्स टू डिजिटल इकोनॉमी इट हैज हेल्प्ड अ लॉट इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। yes, we have seen how we have fought this covid, it is still ongoing, but remote diagnosis possible हो गए। बैंगलोर में बैठा हुआ कोई ऑनलाइन कंसल्टेंसी आपको यहाँ पे दे रहा है बिकॉज ऑफ द ड्रोन टेक्नोलॉजी। मेडिसिन वहां वहां पहुंचने लग गई जहाँ पे इवन रोड भी नहीं थी। So these are some of the very benefits of digital economy in manufacture and agriculture। if we look, robots की वजह से अब robots जो होते हैं और उनके अंदर जो कुछ data feeded है, they are able to monitor the crops, they are able to tell you कि इस पे कुछ आपको treatment करना भी है या नहीं है, और soil quality भी बता सकते हैं। So these were the effect of digital economy on different sectors। Now let's move to our next। So we have seen कि डिजिटल इकोनॉमी के फायदे क्या हो रहे थे, सारी चीज क्या हो रही थी। अपार्ट फ्रॉम दैट चीजें चेंज हो रही थी, लेकिन एक कौन सी चीज चेंज नहीं हो रही थी, वो थे अपने लॉस। ये जो डिजिटल इकोनॉमी है, that has bring a challenge to some of the taxation transaction। let's have a look कि वो challenges क्या थे। मेन टैक्स चैलेंज का जो पहला चैलेंज था, that was nexus। इसने जो पहले इंपॉर्टेंट एंगल को हिट करा डिजिटल इकोनॉमी में, वो था नेक्सस प्रिंसिपल। हमें पता है कि एज पर करंट लॉ जो भी है अपना, an income is taxable in India if there is a business connection in India। और ये जो बिजनेस कनेक्शन जो होता है, ये some sort of presence, some sort of permanence in the form of office is required, कि आपका कुछ ना कुछ फिजिकल प्रेजेंस जरूर यहाँ होना चाहिए। बट let's take an example, हुआ क्या in digital economy। let's assume there is one USA कंपनी जो कि CD DVD बना के इंडिया में थ्रू अ ब्रांच बेचती थी। अब जब वो ब्रांच के थ्रू बेचती थी, क्योंकि ब्रांच यहाँ पे एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, एक परमानेंस यहाँ इंडिया में है, तो उसकी जो भी इनकम हो रही थी वो टैक्सेबल हो रही थी। अब डिजिटल इकोनॉमी आया, वही जो यूएसए की कंपनी है उसने क्या करा, उसने एक वेबसाइट फॉर्म कर ली। वो जो वेबसाइट फॉर्म करी, अभी भी कस्टमर वो म्यूजिक एंजॉय कर रहा था बाय डाउनलोडिंग द म्यूजिक फ्रॉम दैट वेबसाइट, लेकिन उसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस अब नहीं थी कंपनी की इन इंडिया। क्योंकि कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं थी और एक वर्चुअल एग्जिस्टेंस था, और अपने लॉस फिजिकल प्रेजेंस को इतना वेटेज दे रहे थे, तो आप टैक्स कैसे करो, नेक्सस कैसे एस्टेब्लिश करो। सेकंड वाज एट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू क्रिएटेड। बिकॉज ऑफ डिजिटल इकोनॉमी इतना डेटा फ्लोट होने लग गया, डिफरेंट कंट्रीज की कंपनी डिफरेंट डेटा फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज कंपनीज के पास आने लग गया। दे स्टार्टेड एनालाइजिंग दोस डेटा और सिटिंग ओवर ऑन वन प्लेस, वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में सेल करने लग गए डिजिटल गुड्स एंड सर्विसेज। अब इस पूरी चीज में आप वैल्यू कहाँ क्रिएट मानोगे, आप कहाँ मानोगे कि एट्रीब्यूशन कहाँ हो रहा है, कैसे निकालोगे इस चीज को। दैट वाज वन ऑफ द मेन चैलेंज। लास्ट वाज द कैरेक्टराइजेशन। आप कैरेक्टराइज कैसे करोगे। लेट्स अज्यूम हमको नेक्सस से ये तो समझ में आया कि ये जो वर्चुअल एग्जिस्ट हो रहे हैं, इनकी कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट तो है नहीं, क्योंकि ये वर्चुअली फॉर्म्ड है। जब परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है यहाँ पे इंडियन लॉज में, तो आप इनके बिजनेस प्रॉफिट तो टैक्स कर नहीं सकते। बिजनेस प्रॉफिट टैक्स नहीं कर सकते तो क्या आप इनको रॉयल्टी एफटीएस का नेचर दोगे। कोई भी ट्रांजैक्शन को रॉयल्टी एफटीएस तो ऐसे बोला नहीं जाता। तो कैरेक्टराइजेशन को बहुत इशू क्रिएट हुआ इन द डिजिटल इकोनॉमी। सो दीज वर थ्री ऑफ द मेन चैलेंजेस दैट डिजिटल इकोनॉमी टैक्सेशन के ऊपर लेकर आई। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद वन एग्जांपल। नाउ देयर इज वन इंडियन रेजिडेंट। ओके, एक इंडियन रेजिडेंट है, जो इंडियन रेजिडेंट है वो यूएसए गया। वो यूएसए में बैठा हुआ था और उसने गुड्स ऑर्डर करे ऑनलाइन। ऑनलाइन गुड्स ऑर्डर करे फ्रॉम अ यूके वेबसाइट। यूके वेबसाइट से ऑर्डर करे और जो गुड्स रिसीव हुए वो उस सर्वर पे रिसीव हुए जो कि सिंगापुर का सर्वर था। चलो ठीक है, सिंगापुर के सर्वर ने गुड्स रिसीव करे। जो गुड्स डिस्पैच हो रहे हैं वो उस वेयर हाउस से हो रहे हैं जो कि चाइना में है। अब एक ही ट्रांजैक्शन में अगर अपन देखें तो कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई। देयर इज एन इंडियन रेजिडेंट, देयर इज अ यूएसए आल्सो, देयर इज यूके आल्सो, सिंगापुर भी है, चाइना भी है। अब कौन कंट्री इस पे टैक्स लगाएगा, वी डोंट नो। नेक्सस कहां एस्टेब्लिश होगा, नहीं पता। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहां है, नहीं पता। तो ये जो चैलेंज है ये डिजिटल इकोनॉमी ला रहा था।
Now let's read what was the challenge. In many digital economy business models, एक एनआर कंपनी जो है वो इंटरेक्ट करती है कस्टमर से रिमोटली, either through a website or through digital means, that is without having a physical presence. और जो बहुत सारे डोमेस्टिक लॉज है मोस्ट कंट्रीज के, दे रिक्वायर सम डिग्री ऑफ फिजिकल प्रेजेंस टू टैक्स द बिजनेस प्रॉफिट्स। क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट थी और वो मेंटेन नहीं कर रहे थे फिजिकल प्रेजेंस, तो सच एनआर कंपनी मे नॉट बी सब्जेक्ट टू टैक्स इन द कंट्री जहां पे उनकी कस्टमर लोकेटेड है, तब भी टैक्स नहीं हो रहा था। सो दैट वाज द मेन चैलेंज दैट डिजिटल इकोनॉमी क्रिएट कर रही थी। अब इन चैलेंजेस की वजह से क्या हुआ, ये चैलेंज जो थे दे स्टार्टेड रेजिंग क्वेश्चंस। किस पे इन्होंने क्वेश्चंस रेज करे, अपने लॉज पे। दे क्वेश्चन कि क्या आपके करंट लॉज सेल्फ सफिशिएंट इनफ है भी कि ये जो सारे चैलेंजेस है इनको मीट आउट कर सके, ये जो सारे ट्रांजैक्शन है इनको टैक्स कर सके। अगर नहीं है ये लॉज सफिशिएंट, तो नए लॉज लाने की नीड है। अब वो नए लॉज क्या होंगे, चैलेंजेस आ रहे थे, वीकनेस था, सबको पता था कि वीकनेस है रूल में, क्योंकि वीकनेस था तो ऐसी कंपनीज भी थी जिनको इसके फायदे उठाने थे। सो कंपनीज स्टार्टेड मिसयूटिलाइजिंग दीज लॉज एंड इट रिजल्टेड इन डबल नॉन टैक्सेशन। डबल नॉन टैक्सेशन ऑफ दीज कंपनीज जो ना अपने होम कंट्री में टैक्स पे कर रहे थे एंड नाइदर दे वर पेइंग एनी टैक्स इन देयर सोर्स कंट्री आल्सो। Because of this जो टैक्स अवॉइडेंस हो रहा था, it created base erosion and profit shifting. That is, company have started shifting profit to those jurisdiction जहाँ पे nil taxation थे, even उनका economic presence कहीं और था। और ये जो BEPS इशू आया, ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ हम ही लोग को ये इशू फेस हो रहा था कि इंडियन ही कंट्रीज है जिनको ये सारा टैक्सेशन इशू फेस हो रहा है अंडर द डिजिटल इकोनॉमी। द होल कंट्री, द होल वर्ल्ड वाज गेटिंग अफेक्टेड बाय इट, बिकॉज वर्ल्ड इफेक्ट हो रहा था। इंटरनेशनल टैक्स रूल्स जो थे, जो लॉज थे, वो क्वेश्चन पे आ रहे थे। सो कुछ तो करना था, बोल्ड स्टेप लेने की रिक्वायरमेंट थी। सो व्हाट हैपेंड इज दैट इन ऑर्डर टू restore confidence among the youth, among the each and every companies, among the countries कि नहीं टैक्सेशन लगेगा, those international organization जो कि OECD हुई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन along with G20 countries, they decided कि भाई to ensure कि profits जो है that are taxed where economic activities take place and value is created, they adopted a 15 action plans. ये सारे एक साथ बैठे 2013 में and they framed some action plans towards these BEPS issues. अब ये जो BEPS issues थे, इनकी जो फाइनल रिपोर्ट हुई वो 2015 के अंदर आई। 2015 में जब फाइनल रिपोर्ट आई तो उसके अंदर जो BEPS एक्शन प्लान 1 था, that was to address the tax challenges of digital economy. यही था जो मेन BEPS एक्शन प्लान जिसका आज अपन डिस्कशन भी कर रहे हैं। लेट्स सी क्या डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क था जो BEPS ने, OECD ने नोट करा था इन एक्शन प्लान 1। They noted that against this background that first is to identify क्या main difficulties जो digital economy possess कर रही है। Okay, then what, develop detailed options काय के to address these difficulties and take a holistic approach regarding both the direct and indirect taxation. Issues to be examined कौन से थे, पहला issue to be examined था वो था ability of a company to have a significant digital presence in the economy of another country without being liable to taxation due to lack of nexus, जो अभी हमने पढ़ा lack of nexus, that was the first part. Second was attribution as we have already read, and third was the characterization. So ये जो सारा था that was covered under the OECD कि इन issues को challenge जो है और through these ये issues हैं and then something needs to be done। और वो क्या हुआ, let's see further। OECD analyzed certain options to tackle these tax challenges। उन्होंने एनालाइज करा और 3 ऑप्शन दिए। कौन से ऑप्शन दिए, पहला दिया related to nexus significant economic presence का, okay, then withholding tax for certain type of digital transactions है, जो बोला कि एक सेकंड ऑप्शन है। थर्ड, रिमोट सेल्स के लिए इक्वलाइजेशन लेवी है। अब ये जो सारे चैलेंजेस है जिनका जो इन्होंने ऑप्शन सजेस्ट करे, जो इंडिया थे, इंडिया ने तीनों ही अडॉप्ट करे थ्रू डिफरेंट फाइनेंस है।
फाइनेंस एक्ट वाइड फाइनेंस एक्ट 2016 एंड 2020 इन्होंने अडॉप्ट करा इक्वलाइजेशन लेवी 1.0 और 2.0. बाय फाइनेंस एक्ट 2018 सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस आया, एंड बाय फाइनेंस एक्ट 2020 विथहोल्डिंग टैक्स ऑन ई कॉमर्स पेमेंट. So now through this whatever we have studied so far, that was the overview of our digital economy. That was our first agenda of today's session, where we have captured कि कैसे इकोनॉमी डेवलपमेंट होते हुए क्या चैलेंजेस थे और क्या अंत में क्या ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि इक्वलाइजेशन लेवी और ये सारे ट्रांजैक्शन आए. Now quickly we will move towards our next topic, which is equalization of levy. इक्वलाइजेशन ऑफ लेवी क्या है? बेसिकली जैसे ही ये सारे के सारे बेप्स ओईसीडी ने 3 ऑप्शन दिए, तो इंडियन अथॉरिटीज ने कमेटी फॉर्म करी. वो जो कमेटी फॉर्म करी उसको बोला गया कि आप ये 3 ऑप्शन एनालाइज करो और सजेस्ट करो कि हमको क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए. सो जो 3 ऑप्शन एनालाइज करे उसमें से सबसे जो सही ऑप्शन लगा कमेटी को वो था इक्वलाइजेशन लेवी. बोले ये इजी है, एप्लीकेबल भी हो जाएगा और कहीं पे इश्यूज भी नहीं आएंगे. तो the first amendment was the equalization levy, which was introduced through Finance Act 2016. Now let's understand the legislative intent of it through the memorandum. What memorandum has to say? With the expansion of ICT, information communication technology, the supply and procurement of digital goods and services have undergone exponential expansion everywhere, including India. Currently in the digital domain, business may be conducted without regard to the national boundaries. कोई जरूरत नहीं है national boundaries की. And this may dissolve the link between income producing activity and क्योंकि boundaries ही नहीं है तो ये चीज तो होनी थी. From a certain perspective, digital domain doesn't seem to occur in any physical location, but it takes place in a nebulous world of cyberspace. ये जो सारे की सारी चीजें एक nebulous world of cyberspace में चल रही है, जिसके अंदर जो पर्सन्स कैरी कर रहे हैं बिजनेस, दे कुड बी लोकेटेड एनीवेयर, कहीं पे भी इनकी लोकेशन हो सकती है. नए नए जो बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं, दे डू नॉट रिक्वायर द फिजिकल प्रेजेंस, एंड ऑल दीज हैव स्टार्टेड रेजिंग द न्यू टैक्स चैलेंजेस. सॉरी, जो टिपिकल डायरेक्ट टैक्स इश्यूज हुए वो कौन से हुए? कैरेक्टराइजेशन, हम इस पे ऑलरेडी गो थ्रू हो चुके हैं, नेक्सस एंड अपना जो था एट्रीब्यूशन. द डिजिटल businesses fundamentally challenges the physical presence based P. जो अपनी P थी वो physical base पे requirement था taxation करने का, उसको challenge करा. And memorandum further stated that if P principles are to remain effective in the new economy, जो हमारे fundamental P के concepts हैं old economy के, place of business, location, एक permanence होनी चाहिए, they must be reconciled with the new digital reality, and that give birth to the equalization levy. So equalization का क्या मतलब है? Equalization represents the objective of ensuring the tax neutrality between different businesses. Basically ये था कि जो कोई ऑनलाइन अगर काम कर रहा था वो तो टैक्स पे कर नहीं रहा था, और जो सेम ही जना अगर फिजिकली एक थ्रू सेटअप करके काम कर रहा था उसके ऊपर टैक्सेस लग रहे थे, तो टैक्स डिस्पैरिटी हो रही थी, तो इक्वलाइजेशन लेवी उन पे इम्पोज करना जरूरी था. इक्वलाइजेशन लेवी जो है इट इज टैक्सेबल ऑन कंसिडरेशन जो कि रिसीव्ड और रिसीवेबल हो गए बाय एनआर फॉर स्पेसिफाइड सर्विसेज. हमें एक कंसेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा बिफोर गोइंग थ्रू ईच एंड एवरीथिंग कि ये जो टैक्सेशन है इवेट कौन कर रहे थे? रेजिडेंट अगर होता है तो उसकी तो ग्लोबल इनकम ही टैक्सेबल हो जाती है, लेकिन अगर कोई नॉन रेजिडेंट होता है वो अगर ऑनलाइन कुछ चीजें फॉर्म करता है तो वो बिकॉज उसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं थी वो इवेड हो रहे थे टैक्सेस. सो tax leviable on the consideration that is received or receivable by NR for specified services. Equalization levy introduced क्यों हुआ? To provide clarity, certainty and predictability. India पहली कंट्री थी जिसने equalization levy impose करा. It was introduced through Chapter 8 of Finance Act rather than the Income Tax Act. Finance Act 2016 में 6% की लेवी बताई जो कि एप्लीकेबल होगी B2B ट्रांजैक्शन पे. ये हमने पढ़ा. Let's go and let's see it through a chart. That what actually is the charging section of equalization levy 1.2. Now कोई भी consideration, any consideration which is received by a NR person, a non-resident person,
फॉर स्पेसिफाइड सर्विसेज, वो क्या है अभी हम देखेंगे, कोई भी कंसिडरेशन जो एना पर्सन को मिल रहा है फॉर प्रोवाइडिंग द स्पेसिफाइड सर्विसेज, किसको वो प्रोवाइड कर रहा है, एक रेजिडेंट को फॉर हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन, या फिर एक नॉन रेजिडेंट को जिसकी पी है इंडिया में और वो स्पेसिफाइड सर्विसेज उससे कनेक्टेड है। इन दिस पर्टिकुलर थिंग, ये जो पर्संस होंगे दे आर लायबल टू डिडक्ट अ लेवी ऑफ 6% फ्रॉम द कंसिडरेशन दैट नीड्स टू बी पेड टू द एना। जो कंसिडरेशन है उसका एग्रीगेट अमाउंट 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द स्पेसिफाइड सर्विसेज। स्पेसिफाइड सर्विस को डिफाइन करा गया, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट या फिर एनी प्रोविजन फॉर डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस और एनी अदर फैसिलिटी और सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, और कोई भी सर्विस जो फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे। सो अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है, वो एक ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किसको, एक रेजिडेंट को फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस, या एक नॉन रेजिडेंट को जिसकी पीई है इंडिया में, और उसके अगेंस्ट में वो कंसिडरेशन अवेल कर रहा है, तो ये जो रेजिडेंट पर्सन होंगे इनको एक लेवी डिडक्ट करनी होगी 6% की। नॉन रेजिडेंट पर्सन जो है वो वाला नहीं होना चाहिए जिसकी पी हो इंडिया में और वो स्पेसिफाइड सर्विसेज उस पी से कनेक्टेड है। सो दिस इज द चार्जिंग सेक्शन। वी विल अंडरस्टैंड दिस बाय थ्रू फ्यू इलस्ट्रेशंस आल्सो। Yes, let's see our first illustration. गूगल याहू है यूएसए में एक नॉन रेजिडेंट जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक XYZ प्राइवेट लिमिटेड इंडियन कंपनी है। ये जो XYZ प्राइवेट लिमिटेड इंडियन कंपनी हुई, ये एडवर्टाइजेस करती है ऑन सर्च इंजन्स लाइक गूगल एंड याहू टू जनरेट द बिजनेस, और इस एडवर्टाइज करने के लिए ये पेमेंट पे कर रही है 10 लाख का टू गूगल याहू। फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, अगर गूगल की कोई भी पीई नहीं है इंडिया में, जो पेमेंट करा गया है वो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट टू जनरेट द बिजनेस करा गया है। कोई भी टैक्सेस विथहेल्ड नहीं करे XYZ ने बिफोर मेकिंग पेमेंट टू दिस गूगल याहू। एंड ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज जो है वो होली ऑटोमेटेड प्रोसेस है। Now whether on this transaction equalization levy would be applicable or not. So this is our first illustration. I will give you 2 minutes to go through the provision first, and 1 minute to again have a look towards this illustration, and then you can answer whether equalization levy would be applicable or not in the chat box. Yes. You can send the answer in everyone chat box. Mark it to everyone. प्रोविजन क्या था, एक एनआर पर्सन है जो कि स्पेसिफाइड सर्विसेज ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की रेंडर कर रहा है एक रेजिडेंट को, और उसके अगेंस्ट में जो पेमेंट मिल रहा है उस पे इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। एंड दिस इज आवर फर्स्ट इलस्ट्रेशन। अन्वेषा एवरीवन में ही आंसर कर रहे हैं ना सर? हाँ जी, अभी आंसर्स आए नहीं है, बट ओके, जो भी अभी चैट चल रही है सब एवरीवन में। प्लीज गाइस शेयर। okay, let's move forward. On this particular transaction, yes, equalization levy would be applicable. Why Yes. it would be applicable? Yes, Anvesha. Because there is a NR person Google जो कि एक ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस रेंडर कर रहा है, एक रेजिडेंट को कर रहा है और उसके बिजनेस प्रोफेशन के लिए कर रहा है। सो जो भी पेमेंट कर रहा है उसके लिए उसको एक लेवी डिडक्ट करनी पड़ेगी 6% की। ये जो सिमिलर इंस्टेंस अभी अपन ने कोट करा, दैट वाज द सिमिलर इंस्टेंस बिफोर द कोलकाता ITAT ट्रिब्यूनल आल्सो इन द केस ऑफ राइट फ्लोरिस्ट। एंड
It was in the year 2013 when equalization levy was not implemented. Let's see what tribunal has held at that point of time. The tribunal noted that the service which is rendered by the Google is generation of certain text on the search engine result page. ये एक wholly automated process है and there is no dispute in that. जैसे services जो render हो रही है advertising opportunities की, इसमें कोई भी human touch involve नहीं है. क्योंकि इसमें कोई भी ह्यूमन टच इन्वॉल्व नहीं है, चाहे ये टेक्निकल है, पर ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज क्वालिफाई नहीं कर सकती. तो पहले फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज से आउट ऑफ एम्बिट करा. नाउ लेट्स सी पीई के ऊपर ट्रिब्यूनल ने क्या नोटिस करी. ट्रिब्यूनल एनालाइज द पीई प्रोविजंस ऑन सर्च इंजन लाइक गूगल और याहू एंड स्टेटेड दैट अंडर द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ पीई, जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट था अपना पीई का, फिजिकल प्रेजेंस वाज रिक्वायर्ड इन द सोर्स कंट्री if any significant level of business was to be carried out. But with the development of internet, the correlation between the size of business physical presence has virtually vanished. In that sense, जो traditional PE है, which was conceived at a point of time, तब वो form हुई थी जब internet भी नहीं था. वो आज के जमाने में जो virtual presence आ गया है, it doesn't hold good. ये fit नहीं है. And that's why the tribunal held that the conventional PE test इस transaction में fail करते हैं, क्योंकि कोई भी virtual presence के ऊपर अपने law में जगह नहीं है. And that's why the company is not required to withhold any tax. So before this equalization levy, ये challenge था, क्योंकि कोई भी virtual presence नहीं थी और physical presence नहीं थी. ट्रिब्यूनल को ये दिख भी रही था कि यहाँ पे इकोनॉमिक प्रेजेंस है गूगल की. Still under the laws they were not able to tax it. Hopefully you have got the concept of equalization levy 1.0, and now we will move towards our next topic, that is equalization levy 2.0. 2.0 which was introduced by Finance Act 2020. ये जो introduce हुआ that were on non-resident e-commerce operator not having a PE in India, and ये introduce हुआ जिसकी वजह से in order टैक्स डिस्पैरिटी हटे एक रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर पे एक नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर पे. Now let's see what is EL 2.0. It aims to tax the digital transactions जो कि अंडरटेकन करे किसने, फॉरेन ई कॉमर्स ऑपरेटर ने. इन एडिशन हमने देखा जो EL 1.0 था, जो पहला EL था, वो सिर्फ B2B पे रखता था, वो बिजनेस पे लगता था. लेकिन जो EL 2.0 है, इट इज एप्लीकेबल इवन ऑन B2C ट्रांजैक्शंस. और इसमें जो लाइबिलिटी डाली है वो नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर पे डाली है. पहले वाले में लाइबिलिटी किस पे थी, दैट वाज ऑन द रेजिडेंट, पर यहाँ पे लाइबिलिटी इंपोज करी नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर पे. लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू द चार्ट. So a consideration, कौन सा consideration we will discuss. A consideration which is received by an e-commerce operator, for example Amazon, and for the providing e-commerce supply or services, वो कुछ supply और services provide कर रहा है या facilitate कर रहा है, किसको, एक resident person को, उस person को who buys such good or services using an IP address located in India, जिसने वो purchase करिए through an IP address located in India, और NR को in specified circumstances में. कौन से specified circumstances, वो specified circumstances में जहां पे target customer या फिर target audience India है. Sale of advertisement which targets a customer who is resident in India, या फिर वो sale of data जिसके अंदर target is resident Indian. So charge किस पे है, चार्ज हुआ ई कॉमर्स ऑपरेटर पे. ये बोला गया कि ये जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है नॉन रेजिडेंट जो ओ करता है, ऑपरेट करता है और मैनेज करता है उस प्लेटफॉर्म को, उसको अगर कोई भी कंसिडरेशन मिल रहा है फॉर सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज थ्रू दिस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, किसको वो सप्लाई कर रहा है, एक रेजिडेंट पर्सन को कर रहा है या उस पर्सन को कर रहा है जो इस गुड्स और सर्विसेज को यूज कर रहे थे एन आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया, तो इस कंसिडरेशन पे उसको लेवी पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 2%. Now let's see what is included and excluded in this consideration. Consideration received or receivable, ये include करता है
वो सेल ऑफ गुड्स और वो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज irrespective of the fact कि ई कॉमर्स ऑपरेटर उसका ओनर है या नहीं है. What it's trying to say कि समझो कोई ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है जो कि इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सेल कर रहा है, तो वो जो कंसिडरेशन होगा जो इस प्लेटफॉर्म से सेल कर रहा है वो भी कंसिडरेशन इन द कैलकुलेशन वुड बी टेकन इनटू. एक्सक्लूड क्या करते हैं ये एक्सक्लूड वो कंसिडरेशन कर रहे हैं जिसके अंदर जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है जो गुड्स सोल्ड कर रहा है थ्रू दिस प्लेटफॉर्म इज अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया या फिर वो एक ऐसा एनआर है जिसकी पी है इन इंडिया में, और या फिर जो कंसिडरेशन विच आर टैक्सेबल एज रॉयल्टी और एफडीएस. अगर इसका एक्सक्लूजन का मीनिंग देखें तो ये उन ट्रांजैक्शंस को एक्सक्लूड कर रहा है जो कि एक रेजिडेंट को ही कर रहा है. एक रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अगर ट्रांजैक्शन करता है थ्रू अ डिफरेंट टू अनदर रेजिडेंट तो वो ऑटोमेटिकली कवर्ड है अंडर द इंडियन लॉज, उसके ऊपर कोई फर्दर लेवी की नीड नहीं है. एंड सेकंड इज द कंसिडरेशन व्हिच आर टैक्सेबल एज रॉयल्टी एफटीएस. अगर रॉयल्टी एफटीएस के थ्रू टैक्सेबल ही है एक्ट में तो उस पे भी लेवी की नीड नहीं है. सो दीज वर द कंसिडरेशन दैट वर एक्सक्लूडेड एंड इंक्लूडेड. नाउ ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विस कर रहा है. क्या चीज ऑफ सप्लाई और सर्विस कर रहा है? लेट्स हैव अ लुक. वो सप्लाई और सर्विस कर रहा है व्हिच इज ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स, ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ सर्विस जिसका या तो वो खुद ओनर है या तो वो खुद प्रोवाइड कर रहा है या फिर वो फैसिलिटेट कर रहा है या फिर इनका कोई भी कॉम्बिनेशन. सो ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स, ऑनलाइन सेल ऑफ सर्विसेज are considered as under e-commerce supply or service. और ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो है that will cover these following activities. कौन सी? acceptance of offer for sale. अगर आप ऑनलाइन एक्सेप्ट कर रहे हो that would be considered as an online sale. Placing of purchase order, acceptance of purchase order and payment of consideration, all these are considered as online. ये बहुत लिटिगेटिव है पार्ट बट इट इज नॉट कवर्ड अंडर आवर डिस्कशन क्योंकि हम एक ओवरव्यू ही लेना चाहते हैं. So let's again move to this charging section and understand. एक ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि एक नॉन रेजिडेंट है वो ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स कर रहा है या फिर ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ सर्विस कर रहा है. किसको कर रहा है? एक रेजिडेंट पर्सन को कर रहा है या फिर एक ऐसे पर्सन को कर रहा है जो आईपी एड्रेस यूज कर रहा है या फिर ऐसे एनआर को कर रहा है जिसका टारगेट इंडियन कस्टमर है और उसके ऊपर जो कंसिडरेशन मिल रहा है उस पे वो 2% लेवी चार्ज करेगा. Now let's understand the complete charging section through few illustrations. Yes. So our first illustration is there is an Indian company, an XYZ e-commerce participant, an Indian company. ये जो इंडियन कंपनी है ये क्या करती है? ये सप्लाई करती है गुड्स थ्रू ई-कॉमर्स वेबसाइट. ये जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है वो यूएसए की एक वेबसाइट है. एंड दीज गुड्स डेटा सप्लाई थ्रू ई-कॉमर्स वेबसाइट वो एक रेजिडेंट इंडियन ऑर्डर करता है. रेजिडेंट इंडियन ऑर्डर करता है, ऑर्डर प्लेस करता है और कंसिडरेशन इसको पे करता है. Now what about equalization levy? Whether on this transaction equalization levy would be applicable on this e-commerce website or not? I will give you 1 minute. You can post the answer in the chat box. So one has said no. Yes. Answer. No. Very good. No. Perfect. Anyone with yes? Okay, let's move forward. Yes, the answer is no. Reason being that, अन्वेषा बताना चाहोगे? Okay, let me tell. So in this particular illustration, जो भी सप्लाई करी है वो किसने करी है? एक रेजिडेंट ने करी है. एंड वी हैव सीन अंडर दिस
when it is not applicable, those consideration will not be included जहां पे सेल ऑफ गुड्स जो कर रहा है वो एक पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कर रहा है टू अ डिफरेंट रेजिडेंट, बिकॉज इस सिचुएशन में जो रेजिडेंट है दैट इज ऑटोमेटिकली गेटिंग टैक्स अंडर द इंडियन लॉज. So here on consideration that is received from customers in India pertains to goods जिसका एक resident supplier owner है, hence consideration is not subject to 2% here. Reason being that because the intent of the lawmaker is to tax those non-residents जो वो करते हैं goods या provide करते हैं services through digital platforms operated by them even without PE in India. Therefore, wherein goods are owned by the residents, supplier, he would be charged to the Indian taxes on his revenue from sale of goods to customer in India. Hence, again, taxing would be an additional burden. Okay, now let's move towards our next illustration. There is one XYZ, a US company. ये जो यूएस कंपनी है ये गुड्स सेल करती है एक खुद की ही वेबसाइट से XYZ, और ये गुड्स सेल करती है एक अनदर वेबसाइट से जो कि ABC वेबसाइट है टू अदर इंडियन कस्टमर्स. So the XYZ है वो through his own website also selling goods to the Indian customer, and it is also selling the goods through the ABC website. So whether in this particular transaction, the question is on which consideration XYZ is liable for equalization levy. That is whether on this XYZ website consideration, or whether on this ABC website consideration, or on the total consideration. Yes, you can post the answer in the chat box. And then clicking the chat. मेरे चैट बॉक्स आ नहीं रहा. Alt plus H. So Anvesha, can you see anyone has answered? Yes, I can see, but nobody has answered. Okay, okay. Just So the last question was answered. okay, okay. So in this particular scenario, जो XYZ है वो एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर है और उसकी XYZ वेबसाइट से वो सेल कर रहा है गुड्स का. जो ABC वेबसाइट है वो एक डिफरेंट ई-कॉमर्स ऑपरेटर है, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन इन द चार्जिंग सेक्शन कि ये जो लेवी है दैट इज ऑन ई-कॉमर्स ऑपरेटर और उसको जो कंसिडरेशन मिल रहा है उस पे. सो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो द XYZ इज लायबल फॉर इक्वलाइजेशन लेवी ओनली ऑन दोज कंसिडरेशन जो उनकी खुद की वेबसाइट से हुई है. XYZ will be liable to pay equalization levy in India only in respect of the revenue generated from its own website. The sale effected through another e-commerce website shall not be subjected to the equalization levy in the hands of XYZ, which shall be payable by the person operating on the e-commerce site, that is ABC, and such e-commerce operator shall be liable to pay equalization levy on the entire sale done in India, including the sale done by the XYZ through his website. Okay, now let's move towards the next illustration. So this one is very simple. There is an e-commerce website, a USA website, that has provided consultancy through this website to a resident Indian, और resident Indian ने उसको एक consideration pay करा है 3 करोड़ का. क्या इसके ऊपर equalization levy लगेगा? So one answer is yes, another is yes, 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 perfect. बिल्कुल लगेगा. क्यों लगेगा? क्योंकि जो कंसिडरेशन है वो एक रेजिडेंट इंडियन पे कर रहा है ई कॉमर्स वेबसाइट को, और जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है दैट इज रिक्वायर्ड टू पे अ. Before that, there's one slide that I think so I've skipped, which is where equalization levy would not be applicable. That's an important slide. Let's go towards that also. Yes. So there are 3 conditions जहाँ पे equalization levy applicable नहीं होती.
सॉरी फ्रेंड्स, आई स्किप दिस स्लाइड। कौन सी है ये 3 कंडीशन? पहली, जहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर की खुद की पीई है इंडिया में, और जो ये सारा सेल कंसिडरेशन है वो इफेक्टिवली कनेक्टेड विद पी है। सिंपली लॉजिक देखिए तो इतना सा है, अगर उसकी पी है तो पी टैक्सेबल इंडिया में ऑलरेडी हो जाएगी, दैट्स व्हाई वो आउट ऑफ द एम्बिट है। सेकंड, जहां पे ईएल 1.0 लग रहा है, ईएल 1.0 जहां पे 6% की लेवी लग रही है वहां 2% की नहीं लगेगी। सिंपल लॉजिक, 6% बड़ा है, 2% छोटा है, गवर्नमेंट कभी भी कम नहीं जाएगी। थर्ड इज द सेल्स टर्नओवर और द ग्रॉस रिसीट। अगर सेल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट जो है वो 2 करोड़ से कम है ई कॉमर्स ऑपरेटर का, देन इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगी। So now move towards the next illustration, which is our illustration 4. So there is an XYZ, a NR e-commerce operator. He makes or facilitates the following transactions during the year. क्या क्या ट्रांजेक्शन करे XYZ एक NR e-commerce ऑपरेटर ने? इसने सेल करे खुद के गुड्स टू अ रेजिडेंट इंडियन, इसने सप्लाई करी खुद की सर्विसेज थ्रू ओन रिसोर्सेज टू द रेजिडेंट इंडियन, इसने फैसिलिटेट करे सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज which are provided by one non-resident e-commerce participant. इसने फैसिलिटेट करे सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो कि प्रोवाइड करे एक रेजिडेंट ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट ने। सो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो जो पूरा उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर करा, किन किन पे ईएल लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, या सब पे लगेगा, या सब पे ही नहीं लगेगा? यस, पहला जो है सेल ऑफ ओन गुड्स। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सब पे लगेगा इस पे, हाँ या ना? ओके, कोई सिंगल पे? पहला लेके देखते हैं, सेल ऑफ ओन गुड्स टू आरआई, उस पे लगेगा। Yes, no, yes, no. So we are getting very mixed answers. Okay, okay. So let's understand first through this particular company wise. So this NR e-commerce operator उसने पूरे साल में ये ट्रांजैक्शन करे। अगर मैं सिर्फ ट्रांजैक्शन को देखूं तो अगर मैं सेल ऑफ गुड्स कर रहा हूं खुद के ही प्लेटफॉर्म से और खुद के ही गुड्स बेच रहा हूं एक रेजिडेंट इंडियन को, यस, दैट वुड बी टैक्सेबल। अगर मैं सर्विसेज रेंडर कर रहा हूँ एक आर को, वो भी टैक्सेबल होगी। अगर मैं फैसिलिटेट कर रहा हूँ जो एक एनआर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, वो भी टैक्सेबल होगी। मैं फैसिलिटेट वो कर रहा हूँ जो एक रेजिडेंट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, नहीं, क्योंकि वो रेजिडेंट अलग से खुद टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर पूरा ट्रांजैक्शन में देखूं और मैं कंसिडरेशन वाले एंगल को देखूं और नॉन एप्लीकेबिलिटी देखूं कि ईएल कब नॉन एप्लीकेबल होती है, तो देयर इज वन थिंग व्हिच सेज दैट पहली चीज, ई कॉमर्स ऑपरेटर का टर्नओवर अगर 2 करोड़ से कम है तो उसके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगी। और वो जो 2 करोड़ का टर्नओवर है उसका जो कंसिडरेशन है, उस कंसिडरेशन में वो कंसिडरेशन इंक्लूड नहीं होगा जो कि एक रेजिडेंट का है। तो मेरे लिए इफेक्टिवली कंसिडरेशन इसको देखना पड़ेगा। इनका अगर मैं टोटल लगाता हूं तो वो 2 करोड़ से कम आता है। इन शॉर्ट मेरे पे इक्वलाइजेशन लेवी किसी भी ट्रांजेक्शन पे नहीं लगेगा। Okay, hope you have understood this. Now let's move to our next illustration. Yes. So there is a ex company or foreign company which owns, operates a digital platform for online sale of entertainment services. Given below is the detail of revenue earned during the year. एक ये platform वो करती है, digital platform for the purpose of sale of entertainment services. और during the year उनका क्या turnover है? पहला, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया को उन्होंने कुछ एंटरटेनमेंट सर्विसेज दी जिसका 1 करोड़ उनको मिला। एक फॉरेन नेशनल हु विजिटेड इंडिया एंड परचेज एंड डाउनलोड द मूवी डिजिटली यूजिंग द आईपी एड्रेस इन इंडिया, उसके अगेंस्ट में उसको 2 करोड़ मिला। क्या इस ट्रांजैक्शन पे इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा?
फिर से मेरा चैट बॉक्स नहीं दिख रहा। अन्वेषा तुम बता सकते हो कि कोई आया क्या? Yes. Nitish has answered yes, but Patrika has answered no. Somebody has answered yes and no. Okay, so we are getting mixed answers. Okay. Yeah. In this particular scenario, the इस पे तो कंफर्म है कि पर्सन रेजिडेंट इंडिया को जो उन्होंने सेल करी है वो उस पे इक्वलाइजेशन लेवी लगना चाहिए। क्वेश्चन इज दिस फॉरेन नेशनल हु विजिटेड इंडिया एंड परचेज एंड डाउनलोड द मूवीज यूजिंग द आईपी एड्रेस। अगर हम चार्जिंग सेक्शन पे जाते हैं, अपना जो चार्जिंग सेक्शन था, व्हाट चार्जिंग सेक्शन वाज, yes, so it covers which transaction? It covers those transaction also जो person buy such goods or services कर रहे हैं using an IP address located in India. So in our current example, इस illustration में ये दोनों ही कवर होंगे, और क्योंकि ये 2 करोड़ से ऊपर है तो दोनों पे इक्वलाइजेशन लेवी लगेगी। So by this illustrations that I have covered so far, hopefully मैंने सारे के सारे जो भी equalization levy 2.0 के limbs होते हैं I have covered it. Now we will quickly go through the compliance and penal provision of this equalization levy. वो क्या है? पहला है फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। तो जो स्टेटमेंट है इसकी, एक स्टेटमेंट जाती है साल में, फॉर्म 1 में जाती है, 30 जून से पहले जाती है ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जांपल अगर 20-21 फाइनेंशियल ईयर में आपने कुछ इक्वलाइजेशन लेवी चार्ज करा है तो बिफोर 30 जून 2021 यू नीड टू फाइल फॉर्म 1। इंटरेस्ट, इफ देयर इज अ डिफॉल्ट, अगर आपका कोई डिफॉल्ट होता है इन डिपॉजिटिंग द इक्वलाइजेशन लेवी, देन 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। पेनल्टी क्या क्या है? अगर आपने डिपॉजिट या डिडक्ट करने में कुछ डिफॉल्ट करी है तो पेनल्टी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी लगेगी। अगर आपकी स्टेटमेंट ही फॉल्स है, मिसलीडिंग है, तो दिस माइट आल्सो लीड टू अ सिचुएशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट अप टू अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स एंड अ फाइन। और उन इंस्टेंसेस में जिसमें आपने लेवी काट तो ली लेकिन आपने डिपॉजिट नहीं कराई, इन दैट सिनेरियो 1000 पर डे आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, लेकिन इक्वलाइजेशन लेवी अमाउंट तक ही लगेगी। ओके, नाउ लेट्स लुक टुवर्ड्स द ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिटिंग। जो इक्वलाइजेशन लेवी 1.0 था, जो 6% लगता था ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट वालों पे, उनकी ड्यू डेट क्या है? वो मंथली है। नेक्स्ट 7th डे पे आपको इक्वलाइजेशन लेवी हर मंथ की डिपॉजिट करानी है। इन केस ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी 2.0 जो कि एक एनआर ई कॉमर्स ऑपरेटर पे लग रही है, उस केस में क्वार्टर एंडिंग डेट्स है एंड 7th ऑफ ईच मंथ। सो फ्रेंड्स, बाय दिस we have covered our second topic of today agenda, that was equalization levy, and as already I've covered over here how much time it should take, and we are at 4:02, so we have covered it in within our timeline. If anyone has any question related to the illustration that we have discussed, related to the provision we have discussed so far of equalization levy, you can send it in the chat box. We'll have 1 minute or 2 minutes to discuss that. I think somebody has raised some question, Akshay. I'm not able to see it in my chat box. Oh. Should I just Wait a speak second. that out? Yes, you can speak. That would be. Or I can just send you as well. I'm sending you as well. If tell me if it reaches you, or I can speak it out as well. Okay. Whether he applies if an Indian subsidiary places order goods on similar facilities to its foreign parent sister company. Every. So in the intra-group transactions, this covers the intra-group transaction that Jitin is raising. So what we have to look, Jitin, let's go to that EL provision. Wait a second. So basically इशू क्या हो रहा था? इशू ये भी हो रहा है, जैसे हमने देखा कि जो ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विस हो रही है, आई ऑलरेडी स्टेटेड कि ये वाला जो टॉपिक है बहुत लिटिगेटिव है।
इवन इन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर फॉर सेल, जैसे आज हम मेल पे कुछ लेट्स से कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है और हमने ऑनलाइन ही उसको एक्सेप्ट कर लिया रिलेटेड टू दैट ऑफर कि भाई कोई मेल हमने ऑनलाइन भेज दी, हमने कोई ऑर्डर ऑनलाइन प्लेस कर दिया, वेदर अ प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्डर ऑनलाइन या फिर हमारे इंट्रा ग्रुप कुछ डिस्कशंस हो रहे हैं, whether this will also tantamount to as being a supply of services, ये जो क्वेश्चन है दैट इज अनआंसर्ड। टेक्निकली होना नहीं चाहिए अगर हम इक्वलाइजेशन लेवी के इंटेंट पे जाए कि इंटेंट किस चीज को टैक्सेशन करना था, लेकिन इट इज ओपन टू लिटिगेशन, यस, सो द आंसर वुड बी दिस। Okay, now we can move. Hopefully I have answered your query. Yes, so there's no other question. Now we can move to our next topic of today, that is TDS on e-commerce transaction. This topic should take 20 to 25 minutes. Now what happened? गवर्नमेंट को सडनली ये लगा, रियलाइजेशन हुआ कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स हो रही है, ऑनलाइन सेल ऑफ सर्विसेज हो रही है। गवर्नमेंट ने नोट करा कि अब जो नए मॉडल्स भी जो आ रहे हैं, जो नए जनरेशन, जो भी नए बिजनेस मॉडल्स ला रहे हैं, वो बेसिकली सब ऑनलाइन ही है। जो एक किराने वाला था जो फिजिकली बेच रहा था, वो भी ऑनलाइन गुड्स बेचने लग गया। ऑनलाइन गुड्स सब बेचने तो लग गए हैं। कोविड के अंदर हमने देखा है सभी चीज ऑनलाइन आ चुकी है, सारी की सारी चीजें। द सेकेंड एंगल दैट गवर्नमेंट रियलाइज वाज दैट जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट थे जो रजिस्टर हो रहे थे ऑन दोज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, दे वर नॉट फाइलिंग देयर आईटीआर रिटर्न्स। केसेस कुड बी जेन्युइन, लेकिन गवर्नमेंट कोई चांस नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि अगर टैक्स अवॉइडेंस हो रहा है तो गवर्नमेंट वाज नॉट इन अ मूड टू टेक एनी चांस। सो गवर्नमेंट डिसाइडेड कि एक टीडीएस लेकर आया जहां पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर ये लाइबिलिटी इंपोज करी कि आप जो भी पेमेंट कर रहे हो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को, उस पे आप टीडीएस डिडक्ट करोगे। बाय डूइंग दिस they have captured those e-commerce participants under the ambit of taxation. So that was the main reason behind introduction of TDS on e-commerce payment. It was introduced by Finance Act 2020 and was applicable from 1st October 2020. We will understand section 194O by this chart. For 194O एक e-commerce operator है जो कि रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। एक ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट होगा इसमें, जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट होगा दैट शुड बी द रेजिडेंट इंडियन। ये जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है ये सेल गुड्स और सर्विसेज कर रहा है थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ दिस ई कॉमर्स ऑपरेटर। और ये गुड्स और सर्विसेज जब कोई कस्टमर खरीदता है और उसका कंसिडरेशन ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करता है, बिफोर रेमिटिंग दैट कंसिडरेशन टू द ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, this e-commerce operator is required to deduct a TDS at the rate of 1% of the gross amount. तो ये जो भी पेमेंट है बाय दिस इनके ऊपर जो टीडीएस कटा और ये टैक्स एम्बिट में आ गए। तो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन होने चाहिए? रेजिडेंट होने चाहिए। और ये जो पेमेंट काय का हो रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो रहा है। नाउ दे केम इन अनदर सिचुएशन। व्हाट वाज द अनदर सिचुएशन? कि लेट्स अज्यूम देयर इज वन कस्टमर, और जो कस्टमर है instead of making payment to the e-commerce operator, he made a payment directly to the e-commerce participant. Now in this situation क्या होगा? तो इस पे एक प्रोवाइजो इंसर्ट हुआ जिसके अंदर ये हुआ, इन सच अ सिनेरियो जो पेमेंट इसको करे है ये डीम माना जाएगा कि ये जो पेमेंट है ये ई कॉमर्स ऑपरेटर ने ही इस ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को करे है और इस पे टीडीएस लायबिलिटी बनेगी। सो दिस इज द मेन प्रोविजन। अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर को अपना पैन और आधार नहीं देता है, then TDS at the rate of 5% would be applicable. Now let's understand few definitions of it. ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर वो होगा एनी पर्सन जो ओ कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है और मैनेज कर रहा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म ऑफ ई कॉमर्स एंड इज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू द ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। ये एक रेजिडेंट भी हो सकता है, एक नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, पर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट रेजिडेंट इंडियन ही होगा जो सेल कर रहा है गुड्स और सर्विसेज थ्रू द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स का क्या मतलब है?
supply of goods or services including the digital products over the digital or electronic network. Okay, now when this provision will not be applicable, ये तब applicable नहीं होगा जहाँ पे जो e-commerce participant है वो एक individual HUF है और जो उसका gross amount of sale और services है through that e-commerce operator does not exceed 5 lakh during the year और उसने पैन आधार दे दिया है। अगर पैन आधार नहीं देता है तो 5% कटेगा और दे दिया है तो कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आती है। ये क्या है, जो भी छोटे पार्टिसिपेंट थे उनको आउट ऑफ द एम्बिट करा गया। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस, जहां पे टीडीएस 194 ओ लग जाएगा वहां पे अदर चैप्टर 17 बी के जो भी टीडीएस प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दीज थिंग्स बाय आवर इलस्ट्रेशन। अब एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, ये जो इंडियन कंपनी है ये सप्लाई कर रही है गुड्स थ्रू द ई कॉमर्स वेबसाइट। ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट पे एक कस्टमर है उसने ऑर्डर प्लेस करा और कंसिडरेशन पे करा। नाउ इन दिस कंप्लीट सिनेरियो व्हाट अबाउट द इक्वलाइजेशन लेवी दैट वी हैव डिस्कस्ड। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो दिस इज द सेम इलस्ट्रेशन दैट वी हैव डिस्कस्ड इन इक्वलाइजेशन लेवी 1.0 आल्सो। सो वेदर इक्वलाइजेशन लेवी वुड बी एप्लीकेबल ऑन इट? Yes, we have already discussed this. Equalization will not be applicable. Very good. Yes, so we are not wasting time over here. Equalization levy will not be applicable. We have discussed this in our earlier provision also. Reason, क्योंकि ये जो एक XYZ है ये एक रेजिडेंट इंडियन है और ये जो रेजिडेंट इंडियन है, हम वापस से उस इलस्ट्रेशन पे जाते हैं अपने। ये था वो इलस्ट्रेशन जहाँ पे XYZ कंपनी एक रेजिडेंट थी और ऑर्डर प्लेस कर रही थी और इस पे इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। तो अब क्या हो गया, अब जो अपना TDS आया, क्या TDS प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे इस पे? ये तो हो गया कि इक्वलाइजेशन लेवी तो नहीं होंगी। What about TDS provision? Yes. Yes. Okay, yes. So on this particular transaction, TDS would be applicable because this is a resident participant and जो resident participant ने जो goods बेचे हैं और उसका जो consideration इसको receive हुआ है, on that consideration this e-commerce operator is required to deduct a TDS of 1%. अगर हम कोई चीज नोट देखें इसके अंदर हो क्या रहा है, इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट जो कंसिडरेशन इक्वलाइजेशन लेवी 2.0 के एम्बिट से बाहर किया गया था इन रेजिडेंट्स को, वो 194 ओ की तरह हमने कैप्चर कर लिया है। सो दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। देयर इज एन इंडियन कंपनी, एन इंडियन रेजिडेंट जो कि सप्लाई कर रहा है गुड्स थ्रू एन ई कॉमर्स वेबसाइट, लेट्स से एन Amazon। और ये जो गुड्स सप्लाई कर रहा है, कस्टमर ने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करा 1 लाख का पेमेंट के लिए। जो 1 लाख का पेमेंट हुआ वो एक पेमेंट गेटवे के थ्रू उसने पेमेंट करा जो कि खुद डिजिटल प्लेटफॉर्म है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो there are two layers of e-commerce transaction that are happening. First is the online sale of goods by Amazon and second is the provision of payment services by a third payment gateway. Now here both Amazon and ABC are e-commerce operator. Will liability to deduct TDS will fall upon both or none or any one of them? So anyone would like to answer this? किस पे लगेगा? ई कॉमर्स वेबसाइट पे लगेगा? ये टीडीएस की लायबिलिटी दोनों पे लगेगी या दोनों पे ही नहीं लगेगी या किसी पे नहीं लगेगी या हमें सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा? Okay, anyway, so in this particular transaction the CBDT clarified what CBDT clarified. The CBDT clarified जब ऐसे इंस्टेंस होंगे where
Amazon, if Amazon has deducted the TDS, then the another e-commerce operator is not required to deduct the TDS, क्योंकि एक ही चीज पे दो बार TDS तो कटेगा नहीं. And for that, it clarified and suggested जो ABC payment gateway can take an undertaking from Amazon that such tax has been deducted. Okay, now let's move to the next illustration. X Limited है एक resident e-commerce participant है जो कि सप्लाई गुड्स कर रहा है इन इंडिया में थ्रू ABC, एक सिंगापुर बेस्ड वेबसाइट है. ठीक है, एक रेजिडेंट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है जो गुड्स सप्लाई करता है एक NR e-commerce operator की वेबसाइट में, which are owned by ABC. During the financial year 2021, X Limited sell goods of rupees 60 lakh through ABC to an Indian resident. The details are as below. Sale हुई 60 lakh की, GST on sales which are included in above sales and shown separately in the invoice 9 lakh का है. In this particular scenario जो TDS है वो 51 पे लगेगा या 60 पे लगेगा? या लेट्स अज्यूम अनदर एग्जांपल, वो 9 पे लगेगा. 69, 51 or any different figure you have in your mind apart from your membership number? $51. 51, yes, perfect, Anvisha. So in this particular, because the GST has been included in the above sales and it has been shown separately in the invoice. So there was one circular which was issued on 23/2017 wherein it was stated कि जो TDS liability है basically वो GST पे fall upon नहीं करनी चाहिए अगर separately आपने invoice में show कर रखा है. अगर separately invoice में show नहीं कर रखा है then on the gross amount the TDS would be deducted. So by this we have majorly covered all the limbs of 194O. Now there were some issues, there were some practical difficulties that industries were facing. वो फेस कर रही थी और वो CBDT के पास गई कि आप कोई गाइडलाइन इशू करो. तो 3 गाइडलाइन इशू हुई थी थ्रू सर्कुलर 17 of 2020, 13 and 20 of 2021. Let's see what important guidelines and clarification was issued by the CBDT. पहला क्या हुआ, जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस थे सिक्योरिटी एक्सचेंज वाले, उन्होंने बोला कि भाई जो हमारे यहाँ से ट्रांजैक्शंस हो रहे, कभी कभी तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसके अंदर हमें बायर सेलर ही नहीं पता होता. सो जो हमारे पोर्टल के थ्रू करके जा रहे हैं ट्रांजैक्शन, क्या उनके ऊपर भी TDS एप्लीकेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी? So it was clarified that in case of transaction in securities which are traded through the recognized stock exchange, the 194O provisions will not be applicable, and similarly on transaction in electricity which are renewable energy certificate or energy save which are traded through power exchanges, उनके ऊपर 194O applicable नहीं होगा. So next clarification जो CBDT लेकर आया वो पेमेंट गेटवे के लिए लाया, जो हमने ऑलरेडी इस इलस्ट्रेशन में कवर भी करा था अगर आपने ध्यान दिया हो कि the payment gateway will not be required to deduct tax under 194O on a transaction if the tax has been deducted by the e-commerce operator. ये जो payment gateway था उसको कोई भी liability नहीं है डिडक्ट करने की अगर वो ऑलरेडी कर चुका है तो. So that was the third clarification. Fourth क्या था? Fourth was on insurance agents. तो insurance agents या aggregators जो हो गए वो पहुंचे CBDT के पास और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि ये इशू है. क्या प्रॉब्लम थी? Let's see by an illustration. There is a policy bazaar.com, एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर वेबसाइट है ये, और बजाज अलायंस है जो सेल्स करता है इंश्योरेंस पॉलिसीज थ्रू ए policybazaar.com. एक कस्टमर है जिसने policybazaar.com के थ्रू इंश्योरेंस लिया बजाज अलायंस का और प्रीमियम पे करा 50 लाख का. क्योंकि ये रेजिडेंट्स हैं और ई-कॉमर्स ऑपरेटर को ये अमाउंट मिल रहा है, बिफोर रेमिटिंग ई-कॉमर्स ऑपरेटर डिडक्टेड अ TDS इन फर्स्ट ईयर ऑन दिस 50 lakh. इशू कहां पे आया? इशू आया सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स. क्या इशू आया? policybazaar.com ने बोला कि फ्रॉम द सब्सिक्वेंट ईयर द कस्टमर हैव स्टार्टेड पेइंग डायरेक्टली टू द बजाज अलायंस, जो कि नॉर्मली होता है प्रीमियम के अंदर. इफ अ डायरेक्ट पेमेंट हैज बीन मेड टू द अलायंस and nothing has been received by policybazaar.com and there is no involvement of policy.
तो policybazaar.com ने पूछा क्या फ्रॉम सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स हम पे 194O लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए. Regarding that, CBDT clarified that in years subsequent to the first year, अगर insurance agent or aggregator has no involvement in the transaction between the insurance company and the buyer of the insurance policy, then he would not be liable to deduct the tax under section 194O for those subsequent years, provided he has no involvement. फिफ्थ क्लैरिफिकेशन क्या है, वो आया थ्रेशोल्ड से रिलेटेड, क्योंकि ये जो TDS 194O है, ये आया तो फाइनेंस एक्ट 2020 में था, लेकिन ये एप्लीकेबल हुआ 1 अक्टूबर 2020. तो अब बात ये आई कि जो एग्जामिशन के अंदर 5 लाख वाला अमाउंट है वो कहाँ से कैलकुलेट हो, फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 या फिर फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020. सो इट वाज क्लैरिफाइड बाय CBDT दैट फॉर द पर्पस ऑफ 5 लाख आप 1 अप्रैल 2020 से ही कैलकुलेशन करोगे. मीनिंग देगा अगर किसी का सेल from 1st April till 30th September have crossed 5 lakh, then from 1st October onwards, on every 1 rupee, the TDS would be deducted. नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन आया ई ऑक्शन एक्टिविटीज के अंदर. ई ऑक्शन एक्टिविटीज के अंदर भी क्या इशू आया, इट्स एन इंटरेस्टिंग इशू, लेट्स सी. So how e-auction activities used to work and what e-auctioneer requested from CBDT. उन्होंने बोला the e-auctioneer involved in conducting the e-auction वो कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता ऑन सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज. ठीक है, जो e-auctioneer है वो रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ प्राइस डिस्कवरी के लिए है, वो सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए नहीं, प्राइस डिस्कवरी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या था ये ऑक्शन सर्विस का, कि जो क्लाइंट है वो सेलर भी हो सकता है, बायर भी हो सकता है. अगर पार्टिसिपेंट ऑक्शन के अंदर सेलर है तो क्लाइंट बायर बन जाएगा, और अगर बायर है तो क्लाइंट सेलर हो जाएगा. जो ई ऑक्शन पोर्टल है वो कोई भी सेल परचेज नहीं करता. जो सेल परचेज होती है वो डायरेक्टली बिटवीन बायर सेलर हो जाती है, व्हिच इज नॉट डन टू द ई पोर्टल. जो प्राइस डिस्कवर भी जो होती है जिसके लिए ही ई ऑक्शन हो रहा है, दैट इज फर्दर can be negotiated between the parties without the knowledge of e-auctioneer. So it stated or it requested that there is no role of e-auctioneer in settling the selling price and the consequent sale transaction. Therefore, it raised the confusion whether 194O would be applicable or not. Related to this, the CBDT clarified that अगर ये जो सारी आप 5-6 conditions बता रहे हो ये satisfy होती है, then there is no need for 194O applicability. Another clarification was required related to the cross application of provisions of 194O, 206C and 194Q. What happened was that ultimately ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे transactions थे जिसपे 194O भी लग रहा था, 194Q भी लग रहा था और 206C भी लग रहा था. 194Q शॉर्ट में अगर हम डिस्कस करें तो वो है जो कि परचेजर्स होते हैं बिफोर मेकिंग अ पेमेंट. सो इट्स अ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन पेमेंट फॉर सर्टेन परचेज ऑफ गुड्स, जिसके अंदर 50 लाख से ऊपर का अगर आप पेमेंट कर रहे हो, आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, तो आपको 0.1% काटना पड़ेगा बिफोर पेइंग टू द सेलर. 206 जो सी है वो सेलर पे एप्लीकेबल होता है. रिवर्स कंडीशन 50 लाख से ऊपर का कलेक्शन है, 10 करोड़ का टर्नओवर है, तो उसको कलेक्ट करना पड़ेगा. अब क्या हुआ, ये एक साथ एप्लीकेबल हो रहे थे, इस पे क्लैरिफिकेशन था कि कौन सा प्रोविजन लगेगा जब ये एक साथ एप्लीकेबल हो रहे हैं. तो इट वाज क्लैरिफाइड कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने 194O में डिडक्ट कर दिया है तो 194 क्यों नहीं लगेगा. अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसपे दोनों एप्लीकेबल हो रहे हैं, 194O भी और 194Q, देन ऑन सच ट्रांजैक्शन 194O जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा. फर्दर अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसपे 194O और 206 हो रहे हैं तो उस पे 194O एप्लीकेबल नहीं होगा. सब में 194O एप्लीकेबल क्यों होगा, क्योंकि इसकी TDS रेट 1% है और बाकी सबकी 0.1% है, और गवर्नमेंट को हमेशा ज्यादा रेट ही चाहिए. बाय दिस we have broadly overviewed what TDS is on e-commerce operators, why it came to picture, how it is applicable on different transactions. And now if you have any questions related to the illustrations that we have discussed, we can take it up, or else we'll move to our
next topic, that is significant non-economic presence. I'll give you 30 seconds because as of now what I can see is only the membership number. Yes. Anyone want to discuss related to TDS on e-commerce? कोई illustration समझ में आया नहीं आया? Or we should move forward? Okay, so we have no questions. Wonderful. Let's move. Let's move to our next topic of today, which is significant economic presence. Yes, significant economic presence. It was introduced by Finance Act 2018. If you can recall, जो OECD का BEPS एक्शन प्लान फर्स्ट था, उसमें उन्होंने कुछ ऑप्शन सजेस्ट करे थे फॉर टैकलिंग द टैक्स चैलेंजेस. उसमें से नेक्सस से रिलेटेड कौन सा था? दैट वाज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस. एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा था नेक्सस रूल को की टैक्सेबिलिटी हो. अब ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस जो है वो क्या है? लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स इट फ्रॉम व्हाट मेमोरेंडम हैज टू से. मेमोरेंडम ने ये बोला कि फॉर अ लॉन्ग टाइम, अपने मेमोरेंडम ने कि फॉर अ लॉन्ग टाइम नेक्सस बेस्ड ऑन फिजिकल प्रेजेंस जो है दैट वाज यूज्ड एज अ प्रॉक्सी टू रेगुलर इनकम अलीजेंस ऑफ अ एनआर. जो नेक्सस बेस्ड ऑन फिजिकल प्रेजेंस, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, एक फिजिकल प्रेजेंस ही होता था पहले. एंड विद द एडवांसमेंट इन आईसीटी, जो नए बिजनेस मॉडल है वो रिमोटली थ्रू डिजिटल मीडियम हैव इमर्ज्ड. एंड जो नए बिजनेस मॉडल है उनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है. देयरफॉर जो एग्जिस्टिंग नेक्सस रूल है बेस्ड ऑन फिजिकल प्रेजेंस that do not hold good anymore for taxation of business profit in source country. Very good. जो OECD का BEPS सेक्शन प्लान 1 आया था, जहां पे ये टैक्स चैलेंजेस को एड्रेस करा था, उसमें से एक ऑप्शन था न्यू नेक्सस रूल का सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस. द स्कोप ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविजन जो सेक्शन 9 की है वो रिस्ट्रिक्टिव है. कैसे? जो सेक्शन 9 है अपना, अंडर विच इनकम इज डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया, उसके अंदर इनकम इज डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया इफ यू हैव अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. जो बिजनेस कनेक्शन है वो एक सम सॉर्ट ऑफ परमानेंस, कोई एजेंट के थ्रू है आपका, कोई ऑफिस हो, उसको डिनोट करती थी. तो इन्होंने बोला मेमोरेंडम में कि जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस है वो रिस्ट्रिक्टिव है, वो फिजिकल प्रेजेंस पे बेस्ड है और वो आज के लिए इमर्जिंग बिजनेस मॉडल के लिए एप्लीकेबल नहीं है. सो इट इज प्रपोज्ड टू अमेंड वाइड फाइनेंस एक्ट 2018 टू इंट्रोड्यूस अ कांसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस. कि कब माना जाएगा कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है. एक एग्जांपल के तौर पे समझे कि क्या हो रहा था कि एक फॉरेन कंपनी है जो समझो पहले अपना काम एक पीई के थ्रू इंडिया में करती थी, तो उसके पीई के थ्रू जो काम करती थी वो पूरे टैक्सेबल होते थे अंडर द इंडियन लॉज. लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, जैसे इस फॉरेन कंपनी ने थ्रू डायरेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू टू द कस्टमर्स, उसका इकोनॉमिक प्रेजेंस तो वहीं एग्जिस्ट कर रहा था, सारे वो रेवेन्यू यहीं से जनरेट कर रही थी, लेकिन अब उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं था. क्योंकि उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं था तो उस पे कोई टैक्सेबिलिटी नहीं लग रही थी. सो वाइड एक्सप्लेनेशन 2A of Finance Act, White Finance Act 2018 and explanation 2A was inserted. और उसमें बोला गया कि दो कंडीशंस रखी गई जो कहलाई जाएगी कि इन दो कंडीशन आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है और वो जो प्रेजेंस है माना जाएगा कि आपका बिजनेस कनेक्शन है, और बिजनेस कनेक्शन है तो आप टैक्सेबल होंगे. अब वो दो कंडीशंस क्या रखी गई? लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स इट. पहली कंडीशन थी रेवेन्यू लिंक कंडीशन और दूसरी थी यूजर लिंक कंडीशन. ये जो रेवेन्यू लिंक कंडीशन थी इसको ट्रांजैक्शन बेस्ड एसईपी भी बोला जाता है. इस कंडीशन में क्या लिखा गया? इसमें लिखा गया कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है इन रिस्पेक्ट ऑफ आइदर गुड है, सर्विस है, प्रॉपर्टी है, जो एक नॉन रेजिडेंट कैरी कर रहा है विथ एनी पर्सन इन इंडिया. ये क्या बोल रहा है? विथ एनी पर्सन इन इंडिया. ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि गुड्स के हैं, सर्विस के हैं या प्रॉपर्टी के हैं, जो एक एनआर कैरी कर रहा है विथ एनी पर्सन इन इंडिया,
that include the provision of data or software download, और उसको जो aggregate payment मिल रहा है from India that exceeds the prescribed amount. 2018 में ये prescribe नहीं करा था. ये जो transactions है, यहाँ के लिए क्या बोला गया कि transactions और activities जो है, जो significant economic presence constitute करती है, ये ट्रांजैक्शन के लिए जरूरी नहीं है कोई भी अग्रीमेंट जो है वो इंडिया में एंटर हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो एनआर है उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस है या नहीं है, जो एनआर है उसने सर्विस इन इंडिया रेंडर करी हो या ना करी हो, उसका एससीपी यहाँ पे हो जाएगा अगर वो ट्रांजैक्शन जो कर रहा है और उसका जो पेमेंट उसको मिल रहा है वो एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से एक्सीड करता है. सेकेंड कंडीशन थी वो यूजर बेस्ड रखी गई. उन्होंने बोला अगर आप सिस्टमेटिकली एंड कंटिन्यूस सॉलिसिट कर रहे हो बिजनेस एक्टिविटीज इंडिया में और आप कितने जनों के साथ कर रहे हो विद सच नंबर अगर आप कर रहे हो तो जो आपकी इनकम है वो टैक्सेबल होगी, वो एससीपी आपका इंडिया में एग्जिस्ट करेगा, बिजनेस कनेक्शन इंडिया में माना जाएगा. ओके सो जो कंडीशंस थी वो 2018 में नोटिफाई नहीं होती. रीजन बीइंग दैट ये था कि जो ओईसीडी थे वो G20 कंट्रीज थी, they were forming the policies कि SAP क्या होना चाहिए and they decided कि by December 2020 जो होगा वो proper SAP के laws लेकर आ जाएंगे through two pillar approach. वो लेकर तो आ जाएंगे लेकिन in order to wait till OECD guidelines लेकर आए, so India deferred the provision of SAP to assessment year 22-23 from applicable from financial year 21. अब इनकी जो इनकम है, इनकम शैल बी डीम टू अक्रू इन इंडिया, कौन सी इनकम डीम मानी जाएगी? ओनली वही इनकम जो एट्रीब्यूटेबल है टू ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज रेफर्ड हियरइन. फर्दर व्हाइट फाइनेंस एक्ट 2020 इंडिया ने इनकम टैक्स एक्ट ने अमेंड करके 3 और कैटेगरी इंसर्ट करी जिनको बोला गया कि ये जो 3 कैटेगरी है ये भी माना जाएगा एज एन इनकम एट्रीब्यूटेबल टू दीज ट्रांजैक्शन और एक्टिविटीज. वो कौन सी एक्टिविटीज थी? पहली एक्टिविटी थी इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट. अगर आप ऐसा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो जिसका टारगेट इंडियन कस्टमर्स है या फिर ऐसे कस्टमर जिनका आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया, उससे जो आप इनकम जनरेट कर रहे हो दैट वुड बी एट्रीब्यूटेबल टू सच एक्टिविटीज. अगर आपकी इनकम हो रही है फ्रॉम सेल ऑफ डेटा, कौन सा डेटा? वो डेटा जो आपने इंडियन पर्सन से कलेक्ट करा है या फिर आपने एक ऐसे पर्सन से कलेक्ट करा है जो कि आईपी एड्रेस इंडिया का यूज कर रहा है, उसके थ्रू जो इनकम होगी फ्रॉम सेलिंग दोस डेटा वो आपकी एट्रीब्यूटेबल टू एक्टिविटीज माना जाएगा. थर्ड वाज इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूजिंग दैट डेटा कलेक्टेड. आपने ये जो डेटा कलेक्ट तो कर लिया, अब इस डेटा को कलेक्ट करके आपने अगर कोई फर्दर सेल ऑफ गुड्स और सर्विस करी हो, किसी को भी करी हो, इररिलेवेंट, और उससे जो इनकम हो रही है प्रोवाइडेड जो सेल ऑफ गुड्स करी है आपने उस डेटा को कलेक्ट करा है जो आप इंडियन रेजिडेंट से कलेक्ट करा है, देन सच इनकम विल आल्सो बी सेड टू बी एट्रीब्यूटेबल टू ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज इन इंडिया. सो मई 2021 में एक रूल नोटिफाई हुआ. गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि ओईसीडी और G20 तो कोई फाइनल कंक्लूजन्स पे रीच हो नहीं रहे, बट गवर्नमेंट वाज नॉट इन अ मूड टू डेफर द एसएपी प्रोविजंस फर्दर. वो डेफर नहीं करना चाहते थे तो उन्होंने थ्रू अ नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब द कंडीशंस. क्या कंडीशंस प्रिस्क्राइब करी? रेवेन्यू लिंक कंडीशन में उन्होंने प्रिस्क्राइब करा कि 2 करोड़ जो है वो रेवेन्यू रिलेटेड कंडीशंस में रहेगा, 3 लाख नंबर ऑफ यूजर्स जो है यूजर लिंक कंडीशंस में रहेगा. अगर हम प्रोविजन अब पढ़े तो प्रोविजन जो एग्जिस्ट करते हैं एज ऑफ नाउ आर एसईपी कब कॉन्स्टिट्यूट होगा इंडिया में? जब कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है एक एनआर विद एन इंडियन और उसका जो पेमेंट है वो 2 करोड़ से ज्यादा रिसीव कर रहा है फ्रॉम इंडियन, इन सच ए केस उसका एसईपी इन इंडिया बोला जाएगा. सेकंड, अगर वो सिस्टमेटिक कंटिन्यूस कर रहा है और इंटरेक्ट कर रहा है 3 लाख से यूजर से ऊपर, इन सच ए केस जो भी उसका इनकम एट्रीब्यूट होगा वो एससीपी कहलाया जाएगा. ये तो हुआ इन्होंने जो एससीपी थी वो एक्टिवेट कर दी फ्रॉम 1 अप्रैल 2021. लेकिन ये जो एससीपी आई गई है इसमें बहुत सारे इंटरप्रिटेशनल इश्यूज है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं. देखते हैं कुछ को कि क्या क्या चैलेंजेस हैं. पहला है इसमें लिखा गया ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स सर्विस और प्रॉपर्टी.
अगर हम कंसेप्ट पे जाए तो कंसेप्ट था कि नॉन रेजिडेंट जो था वो जो एक वर्चुअल प्रेजेंस के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहा था वो टैक्स नहीं हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो गुड सर्विस और प्रॉपर्टी आई तो क्या सर्विस के अंदर नॉन डिजिटल सर्विसेज भी कवर होगी, क्या गुड्स के अंदर फिजिकल गुड्स भी कवर होंगे, ये कहीं डिफाइन नहीं था। मीनिंग ऑफ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस सॉलिसिटिंग ऑफ इट्स बिजनेस एक्टिविटीज क्या है, ये कुछ भी डिफाइन नहीं करा। कंप्लायंस इशू, कंप्लायंस इशू क्या हुआ, सो एसईपी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट तो आ गया, लेकिन स्टिल कंपनीज जो है और जो जुरिस्डिक्शंस है जिसका ट्रीटी है इंडिया के साथ, वहां पे अभी भी पीई रूल ही एग्जिस्ट करता है, वहां पे कोई एसईपी रूल नहीं है, क्योंकि वहां पीई रूल एग्जिस्ट करता है, वो कुछ सम सॉर्ट ऑफ परमानेंस चाहिए, तो ट्रीटी बेनिफिट विल प्रिवेल ओवर द इनकम टैक्स है। सो एज ऑफ नाउ ये जो एसईपी प्रोविजंस है दे विल हिट ओनली दोज जुरिस्डिक्शन जहां से इंडिया का ट्रीटी नहीं है। Next was determination of number of users. 3 lakh users simply stated. अब ये जो 3 lakh users है ये कौन है? क्या आईपी एड्रेस से जो यूज कर रहे हैं वो वाले यूजर है, एक्टिव यूजर है, डोरमेंट यूजर है, पैसिव यूजर है, ये यूजर है कौन? डिटर्मिनेशन ऑफ रेवेन्यू थ्रेशोल्ड। अब ये जो रेवेन्यू थ्रेशोल्ड है 2 करोड़ प्रिस्क्राइब तो कर दिया, ये कौन सी रेवेन्यू है? ये नेट डिस्काउंट है, ये बिफोर जीएसटी है, ये सेल्स रिटर्न को हटा के है या क्या है? These were the unanswered questions in this particular SEP related provisions. With this, we have covered our fourth topic also for today, जो कि है significant economic presence. I don't think so इसके ऊपर कुछ questions होंगे क्योंकि अभी ये practical इतना implement नहीं हुआ है, effective तो हुआ है 1 अप्रैल से, लेकिन still इस पे practical implementations अभी देखने को मिली नहीं है, but अपन को पता होना चाहिए that this is a particular law that has been inserted in our income tax act, which is significant economic presence. If anyone has any question related to either this topic or TDS on e-commerce, अगर कोई discuss करना है या कुछ पूछना है, then we can discuss it, or else we will move to our next topic, which is OECD Global Tax Deal, that is the 2-pillar approach. होप अभी तक जो भी डिस्कस हुआ आप लोगों को समझ आ रहा है। I've kept this presentation very basic, जिससे हमें एक बेसिक लॉ तो समझ में आए कि क्या है या क्या नहीं है। एंड स्टिल मेंबरशिप नंबर आ रहे हैं, अभी भी मेंबरशिप नंबर आ रहे हैं। Okay, so let's do one thing. We'll move towards our next for today, which is OECD Global Tax Deal. ये OECD Global Tax Deal है क्या, ये 2-pillar अप्रोच क्या है? अगर रिसेंटली न्यूज़ देखा होगा तो आया ग्लोबल टैक्स आ चुका है, टॉप 100 कंपनीज पे लगेगा, पर ये है क्या? लेट्स मूव बैक टू OECD, जब उन्होंने ये 3 चीजें एनालाइज की। OECD ने ये 3 ऑप्शंस दिए, कौन कौन से ऑप्शन दिए हमने देखा, एसईपी दिया, विथहोल्डिंग टैक्स ऑन सर्टेन टाइप ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस बोले, और रिमोट सेल्स के लिए इक्वलाइजेशन लेवी बोले। अंडर द OECD BEPS सेक्शन प्लान 1 these ऑप्शंस जो हैं ये सजेस्ट तो हुए थे पर ये रिकमेंड नहीं हुए थे। एक ऑप्शन दिया गया था कंट्रीज को कि आप इन ऑप्शंस को अडॉप्ट कर सकते हो अपने होम लॉ में, लेकिन अगर आप इसको अडॉप्ट कर रहे हो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, सो जो आप मैनरिज्म में अडॉप्ट करोगे वो ऐसा मैनरिज्म नहीं होना चाहिए जिससे जो बायलैटरल लॉज है या फिर जो ट्रीटी है वो हिट हो। सो दैट वाज द मेन एजेंडा कि ये हिट नहीं होने चाहिए। लेकिन व्हाट OECD, G20 कंट्रीज एंड यूएसए आल्सो रियलाइज, दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि जो सारी कंट्रीज है डिफरेंट कंट्रीज जिन्होंने यूनिलेटरी इस मॉडल को अडॉप्ट करा, उन्होंने इस मैनरिज्म में अडॉप्ट करा जो ट्रीटी रूल्स को कहीं ना कहीं हिट कर रहा था,
जो कहीं ना कहीं कंपनीज के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था इन ऑर्डर टू टैक्स देम, एंड क्योंकि प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था, सो OECD along with G20 countries they decided कि हम now we should bring that two pillar approach जो बहुत पहले से चल रही थी। और जनवरी 2021 में क्या हुआ, जनवरी 2021 में the office of US trade representative issued one report and the finding from section 301 of the trade act। उस फाइंडिंग में क्या था, उस फाइंडिंग में ये था कि जो लेवी अडॉप्टेड है इंडिया में, ये जो इक्वलाइजेशन लेवी लेकर आए हैं, it was presumed by US authorities that this levy introduced is discriminating against some US digital companies। For example, आपकी जो ये लेवी आई है, ये एप्पल, अमेज़न, गूगल, फेसबुक, हमारी जो यूएस की डिजिटल कंपनीज है उनको स्पेसिफिक टारगेट करने के लिए आई है और वो डिस्क्रिमिनेट करती है, एंड इट इज इनकंसिस्टेंट with prevailing principles of international taxation। फर्दर जो इंटरनेशनल टैक्सेशन के प्रिंसिपल्स हैं आप वो फॉलो नहीं कर रहे हो, and India's EL was considered as actionable under section 301। ये जो इन्होंने रिपोर्ट निकाली, इसके अगेंस्ट में अपने इंडियन अथॉरिटीज ने उनको जवाब भी दिया, सी कोई हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, ये जो हम इक्वलाइजेशन लेवी लेकर आ रहे हैं इट इज नॉट स्पेसिफिक टू यूएस ओनली, एक तो सब पे एप्लीकेबल है, इवन ये नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट पे एप्लीकेबल है, ऑपरेटर्स पे है, एंड ये हम टैक्स डिस्पैरिटी हटाने के लिए लाए हैं कि हमारे जो रेजिडेंट्स हैं उन पे तो टैक्स लग रहा है और वही कोई ट्रांजैक्शन अगर कोई एनआर ई कॉमर्स ऑपरेटर करता है तो उस पे वो टैक्स नहीं लग रहा है। इस टैक्स डिस्पैरिटी को हटाने के लिए हमने ये लेवी इंट्रोड्यूस करी है। हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि हम आपको स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं। इन अक्टूबर 2021 एक ग्लोबल कंसेंसस रीच हुआ 130 कंट्रीज में, जिसमें इंडिया भी थी और यूएसए भी थी। किस पे रीच हुआ, टू पिलर सोल्यूशन पे ग्लोबल कंसेंसस रीच हुआ। As of now it is this has become 137 countries to address the tax challenges। जो टू पिलर अप्रोच था वो था to address the tax challenges from digitalization of the economy। उसमें OECD ने ये स्टेटमेंट निकाला कि as soon as ये जो टू पिलर अप्रोच इंप्लीमेंट होगी तो वो जो सारी कंट्रीज है they also agreed on that कि जो सारी कंट्रीज है they are required to withdraw the unilateral measures that they have adopted in the form of digital service tax और इक्वलाइजेशन लेवी आपको विड्रॉ करने पड़ेंगे, एंड यू नीड टू कमिट कि आप कोई भी ऐसे मेजर्स इन फ्यूचर में नहीं लोगे। इन नवंबर 2021 बिकॉज देयर वर हीटेड डिस्कशंस गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड यूएस, इंडिया ने एक प्रेस रिलीज निकाली। वो जो प्रेस रिलीज निकाली इंडिया ने, उसके अंदर इंडिया अग्रीड रिलेटेड टू दिस कंसेशन, और जो जॉइंट स्टेटमेंट अग्रीड हुई यूएसए की उसके अंदर कुछ मेजर्स थे जो इंडिया ने बोले कि हम ये फॉलो करेंगे। क्या थे, पहला ये था कि इंडियंस ने बोला कि इक्वलाइजेशन लेवी जो है दैट विल कंटिन्यू टू अप्लाई ऑन यूएस कंपनीज तब तक, कब तक लगेगा, जब तक ये टू पिलर अप्रोच सोल्यूशन नहीं आ जाता, या फिर 31 मार्च 2024 व्हिचएवर इज अर्लियर। सेकंड जो अग्रीमेंट आया, सॉरी, वो ये आया कि जो इक्वलाइजेशन लेवी इस इंटरम पीरियड में लगेगा। क्या इंटरम पीरियड, फ्रॉम 1 अप्रैल 22 टिल 31 मार्च 2024। इसका क्रेडिट जो है वो आपकी जो भी कंपनीज है उनको फ्यूचर में मिल जाएगा अगेंस्ट द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स लायबिलिटी। बेसिकली जो इक्वलाइजेशन लेवी था, क्योंकि वो फाइनेंस एक्ट में लग रहा था, तो उसका क्रेडिट जो है वो जो बाहर वाली कंपनीज थी वो ले नहीं पा रही थी अंडर द डोमेस्टिक लॉ। तो इन्होंने बोला कि अगर आपको यही प्रॉब्लम हो रही है तो हम आपको क्रेडिट दे देंगे, लेकिन वो क्रेडिट कहाँ से अक्रू होगा, वो 1 अप्रैल 22 से चालू होगा, वो तब तक चलेगा जब तक 31 मार्च या फिर पिलर 1 नहीं आ जाता। ओके, now let's move towards what was pillar 1, what was pillar 2। let's get an overview of that। ये जो दो पिलर अप्रोच थी टू एड्रेस दिस टैक्स चैलेंजेस अराइजिंग फ्रॉम डिजिटल इकोनॉमी। पिलर 1 क्या था, पिलर 1 प्रोवाइडेड अ न्यू टैक्सिंग राइट टू मार्केट जुरिसडिक्शन ऑन रेजिडुअल प्रॉफिट। ये पिलर 1 था, ये था it targeted the top 100 companies
biggest companies and most profitable. What do you mean by biggest? Biggest in the turnover and profitable which exceed 10%. कंडीशन ये लगाई गई, इसमें वो भी एम्बिट में आएंगे, कौन आएंगे, जिनका एनुअल ग्लोबल टर्नओवर एक्सीड करता है €20 बिलियन. If we convert that amount into INR, it is 1.72 lakh crore. पता नहीं कितने जीरो होते हैं इसमें, लेकिन इतना उसका टर्नओवर होना चाहिए. सेकंड, उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 10% से ऊपर हो. ऐसी कंपनीज को इन्होंने टारगेट करा, और उनका जो भी रेजिडुअल प्रॉफिट होगा, वो जो रेजिडुअल प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा टू कंट्रीज वेयर दे सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइड देयर सर्विसेज. सो दैट वाज पिलर 1. कैसे करा जाएगा, कैलकुलेशन कैसे होगी, एट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये एक फॉर्मुलरी अप्रोच है जो कि बहुत डिटेल में है. डिफरेंट प्रॉपर पिलर 1 के अंदर प्रॉपर फॉर्मूला भी है, ऐसे निकालेंगे, कैसे एट्रीब्यूट करेंगे. वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्कस इट ओवर हियर. नेक्स्ट वाज द पिलर 2. पिलर 2 क्या हुआ, इसने रिमेनिंग वेब्स चैलेंजेस को एड्रेस करना, जो यहां से हटके इधर आए. पिलर 2 में उनको टारगेट करा गया, इसमें बोले जो लार्ज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी है, एमएनसीज हो गई, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, उनको बोला गया कि आपको मिनिमम 15% टैक्स तो देना ही पड़ेगा. अब चाहे आप कोई भी जुरिस्डिक्शन में जाओ, जो अभी तक कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि कुछ जुरिस्डिक्शन जो थे, दे ऑफर्ड वेरी लो टैक्स या फिर निल टैक्स ही ऑफर करते थे वो लोग. क्यों करते थे, क्योंकि उनको एफडीआई अट्रैक्ट करनी थी. सो वहां पे जाके वो लोग इस्टेब्लिश होती थी कंपनीज, और अल्टीमेटली वो कुछ भी टैक्स पे नहीं कर रही थी. पिलर 2 के अंदर ये आया कि अगर आप कहीं पे भी इस्टेब्लिश हो जाओ, अब आपको मिनिमम 15% टैक्स तो देना ही पड़ेगा. सो दोज वर द 2 पिलर्स that were introduced under the BEPS 2 pillar approach. So by this, so we are at 4:45, and by this I have covered all the topics that were there for today's agenda, starting from equalization levy, overview of digital economy. And by this, what I've tried to capture is that कि आपको एक overview दूं कि digital economy में चल क्या रहा है, जो नए laws आ गए वो क्या है, क्यों आए हैं, important है, and what we have seen today. Let's have a recap of it. Yes. सो हमने ओवरव्यू डिस्कस करा डिजिटल इकोनॉमी का, जिसके अंदर हमने फीचर्स देखे, डिफरेंट बिजनेस मॉडल देखे, इफेक्ट देखा डिजिटल इकोनॉमी का रिटेल और डिफरेंट सेक्टर्स पे, चैलेंजेस क्या थे वो देखे, मेन टैक्स चैलेंजेस है वो डिस्कस करें, नेक्सस था, एट्रीब्यूशन था, कैरेक्टराइजेशन था. थ्रू इलस्ट्रेशंस वी हैव डिस्कस समथिंग. व्हाट वाज द चैलेंज वो डिस्कस करा, वो चैलेंज क्या क्वेश्चंस रेज कर रहे थे, क्या वीकनेस था. ओईसीडी के अंदर बेप्स एक्शन प्लान के अंदर किन किन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए आए, ये जो सारे रूल्स थे इंडिया ने सबको अडॉप्ट करा. ऐसे इक्वलाइजेशन लेवी का बर्थ हुआ, जो ये बर्थ हुआ वो मेमोरेंडम ने क्या स्टेट करा, इक्वलाइजेशन लेवी का चार्जिंग सेक्शन क्या था, we have understood it through illustration also, through some case studies also. देन इक्वलाइजेशन लेवी 2.0 आया, जो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स के ऊपर आया, उसका चार्जिंग सेक्शन क्या था, उसमें क्या इंक्लूड हो रहा था, क्या एक्सक्लूड हो रहा था, ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज है क्या, कौन से केसेस थे जहां पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा. Through numerous illustrations, we discussed the charging section. Then compliance and provisions we have seen. Then we moved towards the TDS on e-commerce payment. उसका charging section क्या बोलता था, आया क्यों था, कुछ relevant definitions हमने discuss करी, illustrations हमने discuss करे जो TDS on e-commerce operators पे थे. गाइडलाइंस क्या इशू हुई, सीबीडीटी ने डिफरेंट जो भी इश्यूज आ रहे थे इंडस्ट्री को, उसके ऊपर कुछ ना कुछ गाइडलाइंस इशू हुई. इंश्योरेंस एजेंट हो गए, ई ऑक्शन सर्विस प्रोवाइडर हो गए, क्रॉस एप्लीकेशन हो गया. देन वी मूव टुवर्ड्स द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस. क्या है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, क्या है वो दो कंडीशंस, रेवेन्यू लिंक, यूजर लिंक कंडीशंस. और ये जो कंडीशंस है इनको नोटिफाई कैसे करा गया फर्दर, क्या टर्नओवर लिमिट रखी गई, अभी भी क्या इंटरप्रिटेशनल इश्यूज हैं इनके ऊपर, हमने उन पे डिस्कस करा. देन लास्टली वी डिस्कस अपॉन द ग्लोबल टैक्स डील, दैट इज द 2 पिलर अप्रोच 1 and 2. So by this
I would like to conclude today's session. Hopefully, what I have promised while starting the session, I have delivered it, and might be or might not. You might have learned something or might not, but I have tried my level best Definitely. to make you understand in a very layman language. So, if you have any questions, we can discuss it, or else we will conclude it. With the introduction of section 194, who are the person who is selling on such product not required to deduct TDS on commission paid to such platform. Okay, Naman, let's discuss that particular thing. We'll move to the charging section and we will discuss what is the particular litigation that you are talking about. So Naman Malu has posted one query that in case of 194O, जो अपना yes, कि इस केस में जो भी कमीशंस पेमेंट हो रहे हैं फर्दर, क्या उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी क्या? जी, उस पे भी टीडीएस एप्लीकेबिलिटी होगी या नहीं होगी, दैट raises another question, and what is an important issue that needs to be looked into is the gross amount. ये जो gross amount है, अगर हम सेक्शन की डेफिनेशन देखें, so this is a very wide definition that they have captured under section 194O, जिसकी वजह से issues हो रहे हैं. 194O बोलता है कि वो उस पे 1% काटेगा which is gross amount of such sales or services or both. ये नहीं कह रहा कि consideration of such sales or services or both. It is saying that on the gross amount. So this gross amount is very wide ambit. अगर लेट्स अज्यूम कि एक सिचुएशन है जिसके अंदर 50 लाख का कोई ट्रांजैक्शन हुआ और उसके अंदर जो कमीशन है उसकी जो भी अपना ऑपरेटर हुआ उसने 5 लाख काट के 45 लाख आपको पे कर रहा है, लेकिन स्टिल इट डजंट सेज दैट कंसिडरेशन आपको जो मिल रहा है उसके ऊपर ये लगेगा, ये बोलता है ग्रॉस अमाउंट. सो ऑन होल 50 लाख that TDS would be applicable. Yes, it is a litigative thing कि आप एक ही चीज पे दो बार लगा रहे हो, कि कमीशन पे भी लग रहा है और इस पे भी लग रहा है, but this is the way it has been worded as of now. Okay, then we can discuss it later on also. Yes, apart from that, yes, Anvesha, over to you. Hi, am I audible? Yes, Anvesha, you are. So I hope nobody has any questions. I hope all the questions are answered now. If anybody has answered. I think Manoj sir wants to ask any question. Manoj Kumar Parikh sir. Manoj sir. Yes, sir. Yes, sir, please. Yes, sir. Am I audible? Yes, you are audible. Yes, sir. My question is that one of my client is employee in a company which has a head office in New York. Okay. He is serving that company and he is doing work from India online. Okay. So his perks and his emoluments will be taxable or not? No. So in this thing, he is an employee. He is not even the e-commerce operator. He is not. Yeah. That is Though this question is not related to our today's discussion. Okay. So no. So he would be taxable as per the. So he is a resident Indian. His global income would be taxable. He is resident Indian. Yeah, so his global income would be taxable. The law is pretty much clear related to that. Whatever he is earning over there, even if he is getting, let's say, ESOPs or RSU, so of that particular company,
So Yeah. that would also be covered under the taxable ambit. And if you see जो इनके perquisites और form आते हैं 12BA, उसके अंदर ये सारी चीजें covered रहती हैं. But sir, isn't it the case that service will be deemed to be rendered in New York or in No, America? So he is a registered employee of that, na? Yeah. No. So there's an employee-employee relationship. Salary provisions would be attracted. Yeah. Yes. Exactly. But he has opened an account in India in DBS Bank, and he is getting his emoluments in that account. That's not an issue. If he is a Companies. resident Indian, things are pretty much clear. Global Yeah. income of that person would be taxable. So it will be taxable in India. Yeah, it would be taxable in India. He is residing in India. Yeah. Though salary is paid in form of bitcoins and later on converted into Indian currency. Salary is paid in form of bitcoins. Yeah, and later on converted into Indian currency in his account. But is he a resident Indian or not? That's Yeah, he is resident Indian. If He has just he is joined. resident Indian, his global income would be taxable. Okay, right. Thank you. Naman sir. Yeah, hello. Yes. Yeah, so yes, so in continuation of my earlier query, I would just try to read out subsection 3 of section 194O. Okay. So it says that notwithstanding anything contained in part B of this chapter, a transaction in respect of which tax has been deducted by the e-commerce operator. A transaction is something which I would like to stress. By the e-commerce operator under subsection 1 or which is not liable to deduction under subsection 2 shall not be liable to tax deduction at source under any other provision of this chapter. So Yes. my only question would be that whether the transaction of sale which is on which TDS is deducted by e-commerce operator and the transaction of commission as we are paying the commission for the same transaction, are these two separate transactions or will this be considered as one transaction? This is the only. So these are two the separate transactions only. One is the commission payment that आप उसकी facility avail कर रहे हो, आप commission pay कर रहे हो, right? तो वो जो commission pay कर रहे हो वो उसकी income हुई. पहली चीज. जो e-commerce operator है वो आपको एक platform दे रहा है to he is providing you that platform कि आप ये services पूरी की पूरी आप avail करो. मेरा जो आपका reply था related to that question was on this anomaly that कि जो ये 194O आया इसमें इन्होंने जो ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स सच सेल्स और सर्विसेज और बोथ जो लिखा है इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि ये ग्रॉस अमाउंट क्या कवर करेगा. अगर ये कंसिडरेशन ही कवर करता है इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो मेरा जो नेट अमाउंट हुआ क्योंकि लेट्स से टेक एन एग्जांपल कि अमेज़न है. अमेज़न पे एक रामलाल जी रजिस्टर्ड है. रामलाल जी रजिस्टर्ड है. उन्होंने सेल करी 50 लाख की. 50 लाख में से 5 लाख अमेज़न ने काटे और 45 लाख रामलाल जी को दे दिए. इन दिस सिनेरियो अगर ये ग्रॉस अमाउंट यहाँ यूज नहीं होता और कंसिडरेशन यूज होता तो मैं 45 लाख पे 194 लगाता. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. लेकिन यहाँ पे जो ग्रॉस अमाउंट इन्होंने इंसर्ट करा है इसके अंदर इसका जो कमीशन भी है वो भी कहीं ना कहीं कैप्चर हो रहा है. सेकेंड वे मैं जो 5 लाख पेमेंट कर रहा हूँ कमीशन का उस पर भी मेरा टीडीएस एप्लीकेबल हो रहा है. तो ये जो दो ट्रांजेक्शन हो गए कहीं ना कहीं ये डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं. दिस इज द डिस्प्यूट दैट इज करंटली गोइंग ऑन आल्सो. Agreed. हाँ, यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना. Yeah. Agreed. अगर ये ग्रॉस अमाउंट की जगह इसको कंसिडरेशन होना चाहिए था. यहाँ पे कंसिडरेशन अगर ये होता then things would be pretty much clear. Because of this gross amount the issue is getting raised. Agreed. Okay. Yes, sir. Okay. I hope there are no more questions. Yes, sir. We can conclude and wish. All right. Thank you, Akshay sir, for such a wonderful and knowledgeable session. I hope हम सबको बहुत ही एक clear view मिल गया है इस topic के लिए. And thank you for explaining in such a simplified manner. Thanks a lot. The agenda of mine also, yes. Yeah, actually, it was so convenient for us to understand these things. Especially, it was in a simplified manner that we really could connect our even our practical situations with the examples you gave. Thank you so much. Okay. All right. Thank you so much, everybody, Okay, for thank your you, everybody. participation. Yes. Okay. Thank you. Namaste. Thank you.